Good evening, friends. Last day of the financial year. Hope everybody has made tons of money. I made some money. My son had come from US after 3 years. He's living in few days. So again, I and my wife will be alone. It's very painful at this age that your son or whatever is away from you. You can't be with him. So it's going to be a bit painful. But I'll share that time with you, so I'll be okay. Now, markets. This move was expected. It might go much higher. It can go much lower. But the main point is, are your stocks going up or down? If your stocks are going up, you should be cheerful. If it's going down, it's not good. See, anyway, the result season is around the corner. It will start by 8th or 9th or 10th, I don't know when. This time it's going to be a grind. Results won't be that good, that attractive. So there won't be much scramble for buying. Another thing, we have on May 10th the Karnataka elections, and on the 13th the results. From the exit poll or whatever poll that was there on TV, is ain't good for the ruling party. How the market behaves, we don't know. A lot of people are of the opinion that the 16,800 is the bottom. I laugh at them because it's too expensive at that level also. This market will seek lower levels, irrespective of my feelings or saying. People don't understand that markets work on fundamentals. This Nifty, you sell 20 legs, buy 20 leg calls. Then the next day you buy that short position in a very haphazard way. 5 rupees, 10 rupees up. You keep on buying. And at the same time, you keep on selling the puts. So net you will lose maybe 50 rupees on 20 lakhs. That's 10 crores. But the image that is created in the market is of great benefit. People think, oh, kya buying? Arey, kya buying hua? Kuch nahi hua. Today, locals bought some 2,700 or 900. Half of that would be arbitrage. They would have bought Reliance in cash and sold in futures. So, net, if SEBI gives that number, how much is arbitrage and how much is the real buying, we will come to know. And anyway, today was the first day. So as usual, I say first 7 days are very bullish. People jump in to buy every nonsensical stock in futures. I'm restricting myself to futures. They buy a lot and come maybe
21st April or 22nd April, everybody will sell. Again back to square one. This phenomena is there, always there. First 7-8 days are very bullish, then don't get trapped into it. And what's this? Just a moment. Yeah, sorry. So the new year has started. I don't know about the players and the so-called traders who mint millions and billions and trillions, but I have never seen anybody making money in Nifty, Bank Nifty, and in longs. If you make money in longs this year, I'll give you a party. To each one separately. तुम पैसा नहीं बना सकता यार. The game is loaded against you. The moment you buy, first of all, say, after emphasis, the cash rate is 1790. You buy at 1800. Now, you don't do anything, the price doesn't move. On 21st of April, all things remaining the same. The future uh, price will be 1790. So gone. Another thing, your brokerage, STT. Now you say you will carry forward it. Another 15 rupees. So you don't realize it's a sunk game. Sunk or skunk or whatever you want to think. It's fully loaded against you. And to top it all, you will buy some calls and this and that. So you will lose money. Baba, don't play futures for the heck of it. If you play futures once or twice a month, it's okay. But if you play it on a regular basis, you're doomed. And otherwise, also, you are doomed. I don't have any opinion about anybody who's trading long in the futures market. You want to go long in the cash market. What is the need of doing futures? Universally, and somebody argued with me, but futures market are there just to hedge. That doesn't preclude anybody from doing anything. You will say, क्या पागल जैसा बात करता है फ्यूचर में लेने का. अरे लेके देखो ना, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेंट ही होएगा. Nobody can make money in longs for sure. हाँ एक दो मतलब if you are a trader who takes position once in a way, yes, you can make money, opportunity. But daily, no way, impossible. And people who are selling courses, stay away from them. If they were so able, why would they sell courses and not do their own trading? This
Mr. Kedia, I heard, is selling courses for 699. Now, how on the earth can he do that? Is he so much needing money? He's an ace trader. Why should he need money? Anyway, I don't sell courses, webinar, telegram, whatever, because I know how to make money in the market. Last time I had said I will take two people as mentor. A lot of people, but I need people who have money, plenty of money. वो 2 लाख में मैं क्या तेरे को मेंटर बनेगा तेरा? So that's that. Another thing, last, if you are holding IEX and IRCTC, please get out. They are most useless, overvalued shit. I had mentioned IEX would be 55. That is because people won't feel bad, but it might go further down. And IRCTC, I don't know why it's quoting at this rate. So please make up your mind. Get rid of that feeling in your heart कि अरे मैं लॉस कैसे बुक करूं. लॉस बुक नहीं करोगे, आपका लॉस बहुत ही बढ़ जाएगा. इससे याद आता है, ट्रेडिंग में नियम जो है, रूल नंबर 1, book your losses. Rule number 2, book your losses. Rule number 3, book your losses. My success rate is 13%. 87% I'm a failure. Failure in the sense I cut my losses very fast. So the number of losses are much more. And when it goes into profit or trade, I ride it till the end. So the moral of the story is buy good shares and sell bad shares. How will you know that something is good or bad? Look at various parameters. I don't look at anything. I only look at the price. If it's going down, I sell. If it's going up, I ignore because I don't buy in futures. So that's that. Earnest request, please get out of this Lotus Lab, IEX, IRCTC, Tata Power. You will be a great loser. Great loser. And please don't told me कि निफ्टी 12,000 कब आएगा. अरे मैंने मेरा अपने हेडर पे लिख दिया है, अंकल 12,000 बोली. अभी बस करो नहीं यार तुम लोग. तुमको क्या मिलता है? Anyway, have a great year ahead. If need be, I can be of any help. Please contact me. I will do whatever I can, but I won't comment on specific stocks. मैं इतना शॉर्ट हूँ, मैं इतना लॉन्ग हूँ, मेरे को नहीं बोलने का है. तुम पैसा देगा 2 लाख रुपया तो आंसर देगा. जनरल कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो बताओ मुझे. आई विल सॉल्व इट. यस अबाउट. Yeah, sir. Good evening. Yeah, good evening. As actually, I received a message in my DM. कि
मार्केट इतना ऊपर गया बट साला मेरा पोर्टफोलियो में आज भी ग्रीन नहीं आया. सो आई वाज अम्यूज्ड. आई टोल्ड हिम कि भाई प्लीज पोर्टफोलियो बेच के साइड में बैठ जाए, अच्छे स्टॉक में कन्वर्ट कर ले अपना पोर्टफोलियो को. दिस इज द ओनली एडवाइस आई गिव. क्योंकि अभी अगर ये मार्केट में आज के दिन में अगर वो उसका एक भी रुपया अगर प्रॉफिट में नहीं आया है तो दैट पोर्टफोलियो इज ऑफ नो यूज. अगर ये मार्केट अगर गिरता है और उसका पोर्टफोलियो ये तो इससे भी गिर जाएगा, उससे ज्यादा ये गिरेगा. तो एक्चुअली दिस इज मेंट फॉर एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग ओवर हियर कि भाई अगर पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निफ्टी कर रहा है या बैंक निफ्टी कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है. दैट इज एक्चुअली ट्रेडिंग. यू कैन नॉट होल्ड निफ्टी इन योर पोर्टफोलियो एज सच. These are future items. But whatever meant is there in your portfolio, it is the real value of money which you are holding. तो उसमें अगर ग्रोथ नहीं है तो it is कोई कोई यहाँ पर आप आर्ग्यू करोगे कि बुल मार्केट है कि बेयर मार्केट, इट इज ऑफ नो यूज एक्चुअली फॉर मी. तो एक तो आज के दिन में तो एनएवी का तो था ही था. और इतना वैल्यू भी नहीं आया. 2000 करोड़ इज नथिंग एक्चुअली इफ यू सी. सेकंड थिंग सर, एक तो इतनी छुट्टियां आ रही है अभी अप्रैल में. इफ यू सी तो ओवरनाइट पोजीशंस अगर कोई लेके जा रहा है तो इट इज आल्सो वेरी रिस्की इफ यू आस्क मी. तो क्योंकि अभी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो रशिया यूक्रेन या चाइना ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि वी आर आउट आउट फॉर वॉर. तो ऐसे स्टेटमेंट्स आने के बाद इफ एनीवन इज taking positions, it is very risky for individual part because मेरे को पता है कोई हेज करके जाता नहीं है, बस ऐसे ही नेकेड शॉर्ट या नेकेड लॉन्ग करके चला जाता है. तो मार्केट कैन मूव एनीवेज, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट रिस्क आपका है, आपका पैसा है. एंड सेड कि वो फैमिली का पैसा है. तो वो एक देखना है आपको. थर्ड थिंग सर, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट आप सब में बढ़ा है और जो भी मेजर स्टॉक्स है दे इंडेक्सेस इफ यू आस्क मी, जो भी रिलायंस है, एसबीआई है, आईसीआईसी है, दे आर एट ए जंक्चर कि अगर मूवमेंट ऊपर की साइड नहीं आया, फॉलो थ्रू नहीं आया तो दे कैन अगेन कम टू द ओवरऑल जो भी पुराना लेवल था वहां पर वापस आ जाएंगे. तो आज सुबह ही मैंने ट्वीट किया था कि जो भी आप बाई करो प्लीज टेक ड्यू डिलीजेंस कि आप क्या बाई कर रहे हो. और दिस शुड नॉट बी फॉर 2 to 3 days. वो आपके पोर्टफोलियो में आप 1-2 साल रखना चाहते हो, 5 साल रखना चाहते हो तो रखो. बट ये मार्केट देख के अगर आप बाई कर रहे हो तो इससे बड़ी यानी इट्स बड़ी फुलिशनेस कोई कुछ है नहीं. तो बस दैट्स इट. वैसे कुछ आज के दिन में बड़े प्लेयर्स के अलावा वैसे सब भाग रहे थे. यानी घोड़ों की रेस में गधे भी भाग रहे थे. बट देखते हैं सर फॉलो अप कितना मिलता है मंडे, क्योंकि ट्यूसडे तो छुट्टी है. तो हाउ मच गट्स बुल्स हैव टू टेक पोजीशंस ओवरनाइट, लेट्स सी सर. विल सी अगर फॉलो थ्रू मिलता है नहीं. यस श्रीनी, आई एम डन सर. श्रीनी. Yes, sir. Good evening, everyone. No, very happy day today. Finally, some reflation. Since I'm watching outside the Nifty Nasha, finally वहाँ थोड़ा trades हो रहा है. So समझ भाई, the prices may have moved up outside this Nifty crowd, but still liquidity ऐसा कुछ rocking नहीं दिखा. And I track maybe 7-8 closely throughout the day. So, but it's good, great news. थोड़ा अगले 4-5 दिन में थोड़ा we need some height, no, to slam the ball. तो वो टॉस मिल रहा है हमको सब के लिए. That's my take. And happy new financial year for everyone. Wish you a great financial year ahead. Great time to drop the mistakes of last year and make some good moves or make some new mistakes at least. या थैंक यू. मोनिल शाह. मोनिल शाह बोलिए. या मोनिल शाह बोलिए. हेलो. रंजन बोलिए. रंजन शिव द्वैत.
मैं ऑडिबल सुनी? हेलो? Yeah, I can hear you, Samrat bhai. प्रशांत भाई बोलिए। आई थिंक वापस प्रॉब्लम हुआ लगता है। आई थिंक दे आर नॉट एबल टू हियर मी, और I can hear you, but yeah, everything else seems very quiet. I can hear. प्रशांत चौहान आप, हाँ प्रशांत चौहान आप अनम्यूट कीजिए। रंजन जी आप अनम्यूट कीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए भाई। हाँ नमस्ते शरद जी। यस सर, बोलिए सर। नमस्ते समर जी। शरद जी से मैं इनपुट लिया था, मेरा आईटी पोर्टफोलियो था, पूरा एग्जिट करके कैश में हूँ। आज मैं आरबीआई का डेटा देख रहा था कि करंट डिफिसिट का अच्छा नंबर आया है, रिड्यूस हुआ है। उसका डिटेल में देखूं तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की वजह से अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है, तो रिजल्ट अच्छा होने का संभव है, तो आईटी में खरीद सकता हूँ। ओ शरद जी ने बोला था कि 25% नीचे मिलेगा, लेकिन मैं जस्ट बेस्ड ऑन द टुडे डेटा व्हाट आई सॉ आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं, you will have to take a call, यार. I can't handle you like that. You can buy या awesome. ओके। Yeah. आज मैं थोड़ा स्टक हुआ था बैंक निफ्टी में, थोड़ा आज मैं ईटीएफ था लिक्विडेट कर दिया मैं पूरा। पता नहीं मैं जल्दी एग्जिट हुआ है कि नहीं, लेकिन अच्छा खासा लो में लिया था, एग्जिट हो गया। Very good. इतना ही बोलना था। थैंक यू सर। या विकास मल्होत्रा जी। Yeah, hi Sharad sir. Hi Samrat sir. गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली सर मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, बट मैं थोड़ा सा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। एक्चुअली जैसे शरद सर बोलते हैं कि निफ्टी एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, तो मैं सभी से ये मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि कभी भी आप निफ्टी को मत देखो, क्योंकि निफ्टी तो आपको गुमराह कर ही रहा है। एक्चुअली निफ्टी आज 17,300 पे है, लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबके पोर्टफोलियो रेड में है, तो ये चीज खुद सोचने वाली है कि अगर निफ्टी मेरा टॉप से सिर्फ 10 से 12% मैक्सिमम गिरा हुआ है, बट आपके पोर्टफोलियो 30% 40% गिरे हुए हैं, तो ये खुद ही अपने आप को सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो रखा है। इट मीन्स क्लियरली एक मैसेज है कि निफ्टी टोटली मैनेज्ड है। और निफ्टी मैनेज कैसे नहीं होता, 3-4 कंपनियां हैं, उससे पूरा का पूरा निफ्टी आप इजिली मैनेज कर सकते हो। रिलायंस है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या एक दो इन्फोसिस या तो यहाँ पे बेसिक बात ये है कि आप अपने अपने जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, आप उसको देखो। आप अपने इंडिविजुअल शेयर्स को देखो, उसके प्राइस को देखो। और पैरेलली इसमें एक चीज और है कि अगर आपको छोटा छोटा प्रॉफिट होता है अपने मिड कैप और या स्मॉल कैप शेयर्स में, ऑल्दो अभी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हो रहा होगा, तो आप करके अपने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में निफ्टी, ठीक है, एक निफ्टी एक ब्रॉडर व्यू हमें देता है, बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ निफ्टी हमें कोई भी व्यू नहीं दे रहा है, ना ब्रॉडर व्यू दे रहा है, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म। तो निफ्टी तो पता नहीं कहाँ जाएगा, 20,000 जाएगा या 14,000 जाएगा, बट पोर्टफोलियो आज के टाइम में सबके 13,000 पे खड़े हैं। दैट्स इट सर। Thank you. थैंक यू। Thank you. बोलिए। या सुरेश भाई। गुड इवनिंग सुरेश। शरद जी। गुड इवनिंग शरद जी। तो आज एक्चुअली पूरी की पूरी मार्च सीरीज में मैंने नोटिस किया था शरद जी कि जब भी बाजार मतलब बाउंस किया है या ऊपर गया है, एवरी डे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट अप हुआ था। लेकिन ऑन फ्राइडे एक मैसिव 8.5 लाख शेयर से बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम और 13 लाख से निफ्टी में कम हुआ था, और आज भी सर इंडेक्स के अलावा कुछ बात कर रहा हूँ ना सुरेश भाई। ओके। दूसरा सर मैंने एक और चीज़ ये नोटिस करी है कि इन 2013 जो इलेक्शन ईयर 2014 से पहले वाले साल में और 2018 में, जो दोनों मंथ के अंदर मार्च तक बाजार जो है एकदम ख़राब थे, और अप्रैल के अंदर
दोनों साल के अंदर 10-10% का मूव आया था बाजार के अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 2023 में भी 2024 के पहले अप्रैल में एक बड़ा बाउंस आ सके सर? क्या यार आएगा, बस यही पूछना था सर आपसे। या थैंक यू। या प्रहलाद जी, प्रहलाद जी बोलिए। भूपेंद्र जी बोलिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम सर, बोलिए। थोड़ा सा ये जानकारी चाहिए थी हमें कि बैंक निफ्टी में मतलब अभी तक अभी कुछ और है उम्मीद जानने का क्या? क्या बोल रहे हो सर? बैंक निफ्टी अभी और ऊपर जा सकती है क्या पूछ रहे हैं थोड़ा? सर बाहर ज्यादा होंगे तो ऊपर जाएगा सर। मतलब रेंज मतलब जानना चाह रहे थे, लोग कह रहे हैं कि 41,500 मंडे को ओपन सर होगा। बैंक निफ्टी के अलावा कुछ बात कीजिए ना सर, या निफ्टी के अलावा स्टॉक्स में अगर बात हो सकती है तो अच्छा है सर, क्योंकि हमको तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में इतना नहीं पता होता है, सिर्फ लेवल पता होता है। वो 44,000 भी जा सकता है और 37,000 भी जा सकता है। बस वही लेवल ही जानना था सर, और कुछ नहीं था, थोड़ा सा लेवल जानना था उसका। हाँ सर, ओके थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ अभिषेक। हाँ अभिषेक। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं सर मैं यहाँ पे हूँ। सॉरी, सम डिले। उसका फ्राइडे नाइट चालू हो गया है तो अभिषेक का। हाँ तो क्या करें अब। तो जस्ट 2 points. sorry. Just 2 points. Reliance was the only one out of the market up today. HFC slightly, but HFC was down. Bank was up. अभिषेक बाद में आ तू, चलने दो। नहीं बाद में आ तू, और तेरा आवाज नहीं आ रहा है। सर अभी भी नहीं आ रहा क्या? नहीं, तू अच्छा बाद ठीक में है सर, आना। कम बैक लेटर। या कम बैक लेटर। या जिम जिम अनम्यूट से। और कोई बोलो भाई। सैमी इनोस, हाँ बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर। सर ये एक स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉम करके, जिसपे ना ऑलमोस्ट और ईयर बैक कुछ इसके मैनेजमेंट पे कुछ रेड वेड पड़ गई थी, बट ये करंट गवर्नमेंट के काफी क्लोज है मध्य प्रदेश में, और इन सब में काफी इनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, और बहुत डाउन आ गया है, समवेयर अराउंड 170 के आसपास आ गया है, बीच में 200 पर स्टेबल हो गया था, और हाई इसने मारा था पिछले साल। क्या नाम बोला आपने? क्या नाम बोला आपने? सर दिलीप बिल्डकॉम। दिलीप बिटकॉइन। हाँ, और ये अराउंड 600 के का टॉप लगा चुका है, मतलब जब जब निफ्टी बहुत जब मार रहा था उस समय की बात है। आपको क्या पूछना है सर? आप पूछिए डायरेक्ट। सर मेरा ये सवाल है कि क्या ये अभी राइट टाइम है इसको लेने का? कुछ मतलब इतना नीचे आ चुका, पर कंपनी बुरी नहीं है, ओवरऑल कई हजारों करोड़ों का पोर्टफोलियो कंपनी का, और प्रोजेक्ट हर दूसरे दिन मिलते रहते हैं। उनके पास जितना ज्यादा ऑर्डर बुक होगा ना, उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, तो उनके पास तो इतना इंटरनल एक्रूवल नहीं होगा कि ये लोग सब काम 5,000 10,000 करोड़ का काम कर सकते हैं। एंड इफ यू कैन रिमेम्बर, IL&FS के पास भी 55,000 का ऑर्डर बुक था। तो जितना ज्यादा ऑर्डर बुक है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का हाई है, आपने थोड़ा सा भी है उस और सोचने का शक्ति है, तो ये सब शेयर में क्यों जाते हो यार? सर पागल हो क्या? एक नहीं सर, एक दिन ये जीरो हो जाएगा, लिख के देता हूँ। ये सब कंपनियां जीरो होती है। सर आप समझते नहीं हो काम का। दिलीप बिल्डकॉन लो ना, ABB लो ना, उससे अच्छा। ठीक है सर। ओके थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यस एमी। Hi Samarth, hi Sharad sir. सर I mean, I just joined. I was hearing Samarth speak. I mean, I'm completely in
in the same line, I feel that mutual funds had to buy something today, so they bought, and they had to sell something like Vedanta, for example, sold on a very high volume today. And Adani was not catching a bid, neither are any banks catching any bid. There is very light, the volume is very light, and so it's not at all bullish, in my opinion. Just had one observation that I wanted to, I mean, one thing that I wanted to share was I was talking to somebody and one question also regarding this. On the telecom side, I was talking today morning to somebody at Ericsson, and they were saying basically, uh, world has never seen the kind of huge 5G rollout that India is going to do in the next 6 months to 1 year. Apparently, it's coming directly from somebody at Ericsson, and of course, Huawei is completely out of it. So it looks like a lot of it is coming to Ericsson, some of it to Nokia, and so I was just today I was just speaking. So I was just wondering if anybody, either Sharad sir or anyone else, any stocks in this space. I could think of Tejas Network. I looked at the chart. It was looking quite interesting, poised bullishly. I don't know. I just wanted to check with Sharad sir what he feels about Tejas Networks or any other such telecom enablement stocks. Of course, Geo and Vodafone. I mean, not Vodafone. Airtel are doing quite well too. Any thoughts on that, Sharad sir? No, Tejas Networks specifically. this industry is capital intensive. You will Okay. never make money Okay. up Got to it. here. Got it. Got it. All right. Your comment today morning about reading, speaking to the tape was very interesting. I don't know if you have shared any thoughts on that already, but would love to hear it. Thank you. Thank you, Shad sir. See, if you can listen to the tape or talk with the tape, then only you are a accomplished trader. If you have to look at the charts, you are not. Yeah. Yeah. Just look at the tape. You will do it for 10 days Yeah. continuously. You will immediately know what is going up and what is coming down. Now, Absolutely. looking at the tape, it doesn't mean that you have to look at the whole tape. You look at specific shares that you are interested, because to see all the shares on the tape is useless. So figure out which shares you want to watch and watch it on the tape. Don't watch it on the screen. Watch it on the TV with the sound mute, Hmm. and you will definitely make something out of it, and you will earn some money. That's it. Absolutely. Absolutely. Thank you. I mean, when you say, I mean, hearing that, I came to the similar conclusion. In fact, I don't look at charts anymore. I mean, I do it once in a month or so just to look at where things are placed and so on. After that, whatever I'm interested on the bearish side, I'm just looking at. I use Zerodha, so I'm just their FNO. I'm looking at the bid ask thing. I mean, it's you're talking about the same thing, right? So when you talk about No, looking no, at the tape, no. Tape in the sense, not on the screen, yeah. okay, Then your view is biased. If you watch it on TV or some ticker hmm. where the prices are scrolling, that's Got it, what I'm saying. got it. Got it. And Thank you, thank you. no, and believe me, if you are a short guy, Yeah. you fucking don't have to do anything. Just sit and go to sleep, go out for a walk. That's it. Yeah. Because one thing is for sure, mean reversion. Mean reversion is there to stay in all spheres of life. So don't be perturbed if it moves up by 5% or goes down by 5%. Hmm.
That's what I would say. Got it. Thank you, Sharad. It's all. Thank you. One last point. I mean, I was just having a good big chat with my friends today, and just wanted to share that also. I mean, this is related to the government and all that. Most people forget that UPA 1 and 2 was the most bullish for stocks actually, and I hope. I mean, if there is a like this kind of a grouping kind of a government instead of one national party, then that's Stop it here. bullish. Stop it. Otherwise, No, otherwise it's, stop it here. yeah. Thanks. No politics. Yeah. You want to talk politics? Uh, No, in what's terms of the, why, how, I mean, what's good for stocks is what I was just trying to make a point. no. But you call me on my WhatsApp number. Thank you. Sure. Thank you. Okay. Thank you. Yeah, Jim Beam enjoyer. Hi Samarth, hi Sharad sir. Thank you for this opportunity. दो questions है मेरे. पहला is specific to the energy sector, more specifically financing in the energy sector. So I have worked with both REC, Rural Electric Corporation, and Power Finance Corporation. They have strong management governance. So I wanted to know your views on their stock prices because I feel with the sort of projects that have been launched by the government of India, like RDS schemes and all, इनके stock prices ज़्यादा move नहीं किए हैं last 3-4 साल में. So that is one thing that I wanted your view on. And secondly was related to the transport sector. I'm very much tempted to accumulate some of Adani Port shares if it goes below 500. Should I do that? Given this scenario जो अदानी के साथ चल रहा है, जितना भी उसका controversy है, so ये दो point है सर. सी पहले तो जो अडानी का बात है पोर्ट का, अगर आप सोच सकते हो कि लेना चाहिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है. A company mired with so many problems, so many governance issue, and still you want to buy, hats off to you. So that answers that. About REC, PFC, if you have worked with them, how much are the bad loans? Tell me now. There are some NPAs, but more or less, मतलब their management teams who are actually overseeing some of the government of India projects, जैसे RDSs, उनका cash flows ये लोग अच्छे से manage कर रहे थे. Exact details शायद मेरे पास अभी नहीं है. नहीं, But वो जो पहले लोन दिए थे पावर प्लांट्स के लिए, वो अभी yeah, तक चालू भी नहीं हुए हैं. वो सब yeah, लोन का क्या yes, होगा? Hello. yeah, So yeah. you tell me how much is that, and that will determine that the share is good or bad. See, what's your name? My name is Abhishek. हाँ, क्या नाम? Abhishek. अभिषेक. Yeah, मार्केट पागल नहीं है. मार्केट वैल्यू नहीं देता है, कितना भी होवे. वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन रहता है. ये मार्केट का जो विजडम रहता है ना, उसको आप समझना सीखो. आप अपना विजडम को गोली मारो. What the market is trying to tell you, act accordingly. So, why would you want to buy PFC and REC? There are much more better items to buy. Yeah. understood.
Thank you, sir. Thank you for your insights. क्या अनिल जी बोलिए. अनिल कर्मोकर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वेरी गुड. सुन रहा हूँ, बस सीख रहा हूँ, सुन के ही सीख रहा हूँ. आपको कुछ पूछना नहीं है, आप स्पीकर पे हो इसलिए. नहीं, मैं स्पीकर पे कहाँ हूँ मैं. अभी आप बोल रहे हो यार. नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, बराबर है, मैं सुन रहा हूँ सबको. अच्छा ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू. या चंद्रकांत अकेला. चंद्रकांत जी. हेलो. यस सर. गुड इवनिंग. बोलिए सर. हाँ, गुड इवनिंग शरद जी. गुड इवनिंग श्रीमत भाई. मेरा सवाल बेसिकली आईटी सेक्टर को लेके है. जो अभी वर्ल्ड ओवर जो सिचुएशन चल रहा है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग, जो इन्फोसिस का सबसे पहला रिजल्ट आने वाला है बिग टेक, एंड विच इज गोइंग टू, आई थिंक दैट विच इज गोइंग टू चेंज द होल ट्रेंड ऑफ द मार्केट. जो वास्तव में धरातल पे लोगों को लाना है, वो आईटी विल बी द लीडर. मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या, और मोर ओवर क्या बैंक भी अपना वो जो पिछला क्वार्टर मेंटेन किया था उन्होंने अपने ग्रोथ को, क्या वो मेंटेन कर पाएंगे सेम मोमेंटम ये कमिंग क्वार्टर में भी? अब पीएनएल तो अच्छा ही आएगा उनका. वो तो आईटी का क्या शरद सर, आईटी का कैसा लगता है अच्छा ही इन्फोसिस का? आएगा. इतने ले ऑफ्स ये जो दिख रहे हैं, तो क्या, और प्लस जो इनके रीजनल बैंक जो रिजल्ट कौन देता है? कंपनी देती है, बराबर है. वो तो उनके हाथ में है, कुछ भी दे देगा, अपने लोग ताली बजाएगा. ऐसा ही होता है. इस बात पे श्रीनिवासन कुछ बोलो भाई. So the results are going to be looking nice. The story, sorry, the story will be volume growth थोड़ा कम हो रहा है, but margin improvement है. Especially हमारे वो different forms of adjusted margin, right? We've all played that game. Adjusted EBITDA, adjusted EBIT, excluding this, currency neutral, this that, सब थोड़ा jargon फेंके, but margins will look nice. एंड आपको इंटरेस्ट है तो आप फुटनोट्स पढ़ लीजिएगा, वहां आपको सब समझ में आएगा. A lot of creativity in provisioning is what I'm told. But on IT in particular, sir, I had a point. This news about this CAD deficit, etc. That is, so CNBC का ही एक last week या maybe 3-4 दिन का वीडियो था, which explains the GCC phenomenon, Global Captive Center, Global Capability Center. Those have gone from almost 1 billion to 3 years ago to 4 billion to 8 billion to this financial year, maybe 20 plus billion. So they are leading the dollar revenue for the country. So I don't know how much the Infosys, TCS, etc. is. आप वो ये CAD का न्यूज देख के आप जाके अपना IT सर्विस कंपनी खरीदेंगे, it may not be the best linear connection. Thanks a lot, Srinaji. And what about the banks, Srinaji, if you can highlight a little bit? अरे बैंक्स तो, मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री से हूँ. Cola marketing and making ads with more emotional content than any functional message. But I've never met more creative writing than bank P&Ls. I have a lot of questions कि COVID का hit किस अब तक नहीं हुआ. So I don't know. Short answer is I don't know, and I don't, as you can guess, I don't believe a lot of the numbers I read. Thanks, sir. Yeah. Sweet. MS. Hello, Sharad sir. Hello. Good evening. Good evening.
सर मुझे एक चीज बोलनी थी आपको, यानी कि बेसिकली बेयर मार्केट तो चल रहा है, आई एग्री विद दैट पॉइंट, बट लेकिन देयर आर सम स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम। जैसे मैंने तो पैसे बनाए, ओके प्ले से मैंने पैसे बनाए, टॉय पीएलआई स्कीम से, आईएसएमटी से मैंने पैसे बनाए, जेनटेक से मैंने पैसे बनाए, आज मैं सोनाटा में घुसा, सोनाटा में ही पैसे बनेंगे मेरे, मुझे ऐसा लगता है मोमेंटम में है। तो बेसिकली लाइक ना मार्केट तो बेरिश रहता है, लेकिन देर आर थिंग्स, अगर आप मैट्रिक्स देखो screener.in से, तो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी मिलते हैं देखने को। तो मैं अपनी एक चीज बोलना चाह रहा था कि बेसिकली आप नहीं कभी भी मार्केट को बेरिश देखो, मैं मान रहा हूँ देयर इज अ बेरिशनेस इन द मार्केट, बट देयर आर थिंग्स विच आर गुड ऑल्सो। तो आप चीजों को एक स्ट्रेटेजी बना के करोगे, स्टॉप लॉस लगा के करोगे, तो यू कैन मेक मोर मनी इन द मार्केट। ये मेरा पर्सपेक्टिव था बोलने का। और आप न्यूज पढ़ोगे, जैसे कि जेंटेक है, जेंटेक यानी कि इट्स आई थिंक किसका थीम था वो, ड्रोन का थीम था, तो हमने उसको पकड़ लिया था 230 टाइप में। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आप थीम्स पकड़ पकड़ के स्टॉक्स देखोगे, तो यू कैन मेक मोर मनी इन द मार्केट, रादर लाइक शॉर्ट का सोचते रहोगे शॉर्ट होगा होगा। आई नो लाइक 12,000 मैं भी चाहता हूँ मार्केट। गाड़ी में क्यों भाई? हाँ साहेब बोलतो ना, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर बोलिए भाई। राहुल भाई, सर राहुल जल्दी यादव, से प्रेस हो गया था। राहुल यादव। गुड इवनिंग शरद सर, समझ सर। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए सर, यू आर ऑडिबल। सर मेरा एक इन्वेस्टिंग पे क्वेश्चन था। सॉरी राहुल जी, म्यूट दबा गया था, सॉरी। सर मेरा क्वेश्चन इन्वेस्टिंग रिलेटेड था। एक फर्स्ट क्वेश्चन, एज सर साइड ऑलवेज से कि वी नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सर और इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए तो पॉसिबिलिटी वेरी हाई दैट बिजनेस विल ग्रो। सो शरद सर और समझ सर, आप अगर suggest करेंगे in future what are the sectors you look mainly focus on, so that where you expect a lot of growth? Technology is one. No, uh, can you? Okay. only industrials. Sir, industrial, high precision manufacturing, can you be like little specific in industrial what, like Siemens and all? Yeah, there are Okay. hundreds of companies here, not only Siemens, both. Okay. See, let me, whatever I know, I'll buy a company where there is a genuine business, okay, and also a business where they enjoy almost monopoly and are leaders. तो ग्रोथ तो आते ही रहेगा, some year it will be down, some year it will be up, but if you are going to buy stocks for a very long time, it doesn't matter. And what matters is that these companies will be there after 10 years, 20 years, 30 years. If answer is yes, you buy them. Now somebody was asking दिलीप बिल्कॉन, वो कंपनी रहेगा कि Right. ये क्या मालूम है अपने को. So Right. don't worry too much about quarterly performances, yearly performances. What you have to look is for a decade of experience. And in our trading also, few years you would be down, few years you will be up. So don't get disheartened if you are making losses. Eventually you will make profits.
and the cycle you have to see is of 10 years. So if you are a trader, hardcore trader, you start at say 25, 35, you make money, 45, you lose money, 55, you make money for sure, and you will maintain it, you will keep it. These are the phases I have seen over years, many people, including myself, and I have concluded that best of the traders after 55 are really very good. So stop thinking about a year or 2 years. Start thinking about decades if you want to be a good person and good investor. And for uh, companies, again, I'm saying, buy only MNCs, please. बाकी कुछ मत लो. चलो और कुछ. सर एक मैक्रो क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड. सर अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं, राइट, द यूएस बैंकिंग फेलियर. अब वो सारे बैंक्स अपने एसेट्स में ट्रेजरी होल्ड कर रहे थे, बट आफ्टर रेजिंग द इंटरेस्ट दे हैव एमटीएम लॉसेस. So, sir, all these banks also having this low-level assets, right? Corporate debts and all those things. So, don't you think in coming time we will see a lot of more bank failures, as we are already seen in like Credit Suisse and Deutsche Bank? These are like few banks coming up right now, but as the Fed will reach the rate hike, we will see more bank failures or more contagious effect throughout the banking system or financial segment, See, because all are interrelated. bad news come with a lot of interval. They don't come together. आएगा सब तकलीफ होएगा. Right. इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास में, but I can foresee there this US market on the stock market. But otherwise, it's very turbulent. How many losses are hidden, nobody knows. Exactly. Yeah. Hello, Sharad ji. Hello, Hi, Thank you sir. so Good much. evening. Cut off. बोलिए. So, sir, basically, sir, जो view है sir short का, तो sir, I have been also in touch with the various banker across North India, and मैं भी sir यहाँ पे basically Delhi में we are providing loans वगैरह. तो sir जो मार्च का महीना गया है, वो सर टेरिबल है. होम लोन्स के लिए, कार लोन्स के लिए बहुत ही मतलब सभी बैंक्स को इतना तकलीफ हुआ है कि दे वर नॉट एबल टू अचीव देयर 25-30% इन होम लोन्स. एक तो सर कॉस्ट जो ईएमआई की वो बढ़ गई है, और काफी ज्यादा मार्जिन पे भी जो लोगों के इम्पैक्ट आ रहे हैं. तो अभी स्ट्रेस बढ़ना चालू हो गया है सिस्टम में. तो मार्च का महीना ऐसा होता है कि हर कोई लोन लेता है और हर कोई घर खरीदता है. पर 25-30% से जो बड़े बैंकर्स हैं, जो टॉप बैंकर्स हैं इंडिया में, उनका नॉर्थ इंडिया का जो आप ये मान के चलिए कि जो बेसिकली जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा हॉट मार्केट रहती है, किसी के टारगेट्स अचीव नहीं हुए आपकी बार. सब ने अपने बस बुक्स क्लोज करी हैं, बस हाँ भाई कर दो, और कुछ नहीं हुआ है, धंधा नहीं हुआ है इस वाले महीने में बिल्कुल भी. हाँ तो सर नहीं, यही है कि रिजल्ट थोड़ा तो सा अच्छे ही आएंगे भाई साहब. हाँ जी, हाँ जी, हाँ रिजल्ट तो जी. अच्छे ही आएंगे. रिजल्ट तो उनके हाथ हाँ में सर, वो है. तो हाँ 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 हाँ. पर सर कब तक दिखाएंगे रिजल्ट, कब तक दिखाएंगे? ऐसा ही है भाई. थोड़ा एनपीएस भी पिकअप होने लग गया है हल्का हल्का. तो बस वो चीज वैसी स्ट्रेस में अभी आने लग गई है. तो सर वही है कि अभी थोड़ा सा अवॉइडिंग, मेरा जो आपने जैसे बता रहे गाइडेंस करें, तो हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं उन चीजों को, तो समझ में आ रहा है. भाई इंडिया झोल है, बहुत बड़ा झोल है. मजे करो और क्या है. आम खाओ, आम खाओ.
आम का सीजन है। चलिए ठीक है। ठीक है। वो लोग अपने को आम खिलाते, अपने अपने आम खाते। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स। या पुष्कर जी, पुष्कर जी। Good evening, everyone. Thanks for giving the opportunity. And thank you, Sharad sir. Last time you advised me about just HAL. So in this expiry, made some money in selling. But sir, again, that share is bouncing like I have not seen anything like I can imagine whatever is happening every day. The share jumps 100, 120 points, and again it start falling down. So as a long-term short trader, I have only one question to ask. Not only on that stock, on those type of stock, whether I'm looking to short for sale for next 3 or 6 months. So shall I keep my position naked or shall I keep on hedging? Because I'm feeling slightly nervous when I'm keeping that position naked. Because that stock is jumping like anything, sir. And sir, second question is on the MNC stock. Pfizer, sir, I wanted to know about Pfizer because that is one MNC stock that has corrected already 25% YTD. Sir, so Pfizer is like any because Pfizer has many allegations on corona vaccine in USA, and even Elon Musk and big people have like criticized them about their vaccination program. So, is it a good opportunity for us to buy a MNC stock like Pfizer on these current levels? It is already down, sir, almost 40-50% from its all-time high. So, need your नहीं नहीं, guidance. वो फाइजर यूएसए लो। अब फाइजर यूएसए लो, Pardon? इधर का मत। फाइजर यूएसए का लो, Okay. Okay, sir. इधर का Okay. मत। And sir, what about and sir, what about sir? One more, sir. US again, French company Saint Gobain. Saint Gobain makes the glasses for the auto, sir. It's हाँ a French मालूम है। conglomerate, sir. Sir, so can it be bought for long term in SIP mode? It won't make money for you. It's Okay, very okay. It's not sir moving. Yeah. what And is sir, I not was doing, moving sir. I or was right, sir. Right, sir. Right, sir. हाँ Sir, बोलिए। one more stock, sir. Sir, one more stock, sir. You are asking about monopoly, sir. So I was just observing few of the stock which has been underperformer and MNC. One of them is sir Gillette, sir. So current price of Gillette stock is around 4,700 or 800, and its lifetime high was around before COVID was around 9,000 rupees. So it's a monopoly and it's like 120-year-old plus business group owned by Warren Buffett also. So can we look into those type of stocks, sir? For long term, for next generation, you are saying the next generation stock picking. So can it be the next generation or it will continue to underperform? I said about industrials. I didn't say of uh, consumer products. और ये Okay, शेविंग okay, का जो okay, है ना fine, fine. दोस्त, अपना Right, sir. पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, True, समझा? true, true. That's the honest analysis, sir. Right, sir. And even after COVID, many people have stopped saving, sir. That is also a data coming, sir. Right. नहीं, लेकिन आप जितना भी कंपनी का पूछा, they Right, are sir. under performers. So True, why true, sir. are you That's why I'm attracted? asking you. Any नहीं, no. Why are you attracted to underperformers? You should be okay, attracted okay. to outperformers. True, true. आप Got the समझे point, मेरी sir. बात को? Outperform. मैं समझ गया, sir. मैं समझ गया, आउटपरफॉर्मर sir. को आप पकड़ो। And true, true, true. Outperformer picking. I have been accumulating Sennheiser Electric. So one of the small story also heard on your spaces about that. अरे बराबर है, but that is not very aggressive यार। True, true. तुम समझते नहीं हो।
जो 52 वीक हाई के पास है ना वही लो यार. Okay, 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 okay. Siemens ABB also in the. कितने साल के हो आप? 32, sir. तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है. अच्छा शेयर ले. Right, sir. ये डिस्काउंटिंग वाले में मत जा. ये इतना गिरा ना, क्या Right, गिरा. वो गिरेला है बिकॉज ऑफ सम रीजन. सिंपल फंडा है यार. right, right. And sir, one last, sir. Again, I know you'll not comment it publicly, but still, sir, how to handle stocks like HAL, sir? ऊपर जाता है बेचो. नीचे Sir, आता है again today I sold it. Okay, और okay. नीचे आता है तो पुट बेचो. True. Okay, नीचे आए तो put बेचो. True, sir. True. Actually, last month, sir, it has given almost 20% return. I sold calls of $2,900 and it became zero, sir. बट सर वो स्टॉक में सर जो मतलब उसका प्राइस एक्शन है ना सर, वो इट मेक्स अस नहीं, मैं नर्वस क्या सर. बोलता हूँ वो कि ऐसा तुम लगता है ज्यादा कि बोलेगा ना. अभी तुम ज्यादा बोलेगा राइट. ना. अब पैसा देगा तो ही बात करेगा तेरे से. और बहुत पूछ लिया श्योर. फुकट में. अब पैसा दो ओके सर. और पूछो. ठीक है सर, ठीक है. आई गॉट यू सर. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिप्लाई सर. थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू. यस. Yeah, Utsav. Utsav. MS बोलिए. गुड इवनिंग सुमन भाई. गुड इवनिंग शरद सर. सॉरी वो स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं कर पाया. सर दो सेक्टर पे आपका व्यू जानना था, रेलवे एंड टायर सेक्टर. सो व्हाट्स योर व्यू सर? रेलवे का अच्छा है और टायर कोई सेक्टर नहीं है, वो बकवास ओके, थैंक यू सर. है. या पुनीत. शरद सर प्रणाम. समर भाई प्रणाम. कैसे हैं? गुड इवनिंग सर. प्रणाम. मजे में सर. सर थोड़ा सा सिल्वर के ऊपर ज्ञान दो सर. सिल्वर रोज भागता हुआ चल रहा है, क्या करना चाहिए? शॉर्ट करें, लॉन्ग करें? आपको एक बात बोलता हूँ, जब तक आपके पास माल ना हो ना, कमोडिटी में शॉर्ट नहीं करने का. ओके. Because the moves in commodities are electrifying. बहुत मूव आता है. बाय ड्राइवर हाउस. The moves are very rapid. You won't be able to keep pace with it. I can very easily say I was the biggest player in gold and oil in India, and I gave up in 2012 because the movements were happening in the night and I had to be awake and I couldn't handle it, so I stopped it. The moves are very, very dangerous, solid. You won't be able to play silver under any circumstances in a bullish market. So forget shorting silver. In fact, my idea is you go long on silver. There is a gentleman whom I know very well. He says that silver will touch 100 or $200. Now, forget 100, 200. If it touches 50 also, so it will be a lot.
And also in India, according to what I know, what I understand, this Indian rupee is going for a toss. So, shorting silver, gold, stay away, Hmm. stay away. हाँ सर, very nice suggestion. Got it exactly. Thank you sir. Thank you. या विकास जी गुड आफ्टरनून सर. नमस्कार शरद सर और नमस्कार समर्थ सर. नमस्कार सर. मेरा यही कहना है कि मैंने अपने शरद सर से 1 साल पहले बात की थी कि उन्होंने मुझे बोला था कि माइक्रो पे काम करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे. तो मैं भी वही टाइम को, तभी मार्केट बहुत बुलिश था, मतलब जून की बात है. तो वो टाइम को मैंने बात किया था सर से, तो शरद सर से. तो मुझे ये पता चला कि मैंने माइक्रो पे ही काम किया था, तभी तक मुझे माइक्रो पता नहीं था. हेलो. विकास जी, आप क्या पूछना चाहते हो? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैंने शरद सर का जो कहना शरद सर ने बोला था मेरे को 1-1.5 साल पहले, तो मैंने वो फॉलो किया. तो उसमें से मेरे को शॉर्टिंग का मुझे कुछ वो टाइम का नॉलेज नहीं था, कि शॉर्टिंग के लिए नॉलेज नहीं था. तो शॉर्टिंग का नॉलेज मुझे वो टाइम को पता चला कि शरद सर ने बोला कि आप स्टॉक स्पेसिफाई में ट्रेड करो. तो मैंने स्टॉक स्पेसिफाई ट्रेड करना है. मैं पहले इंडेक्स में ही करता था, मतलब इंडेक्स को शॉर्ट करता था. तो उसमें आपको पता है कि विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. लेकिन स्टॉक स्पेसिफाई जब भी मैंने शुरुआत की तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत कम हो गया सर. मतलब जो रिस्क लेता था मैं, जो इंडेक्स पे रिस्क ले रहा था उससे कम रिस्क में मेरा स्टॉक में रिस्क में मतलब जो आउटपुट मुझे चाहिए था तो वो मिल रहा था मेरे को. और मैं पूरे पूरे मतलब पूरे ट्विटर पे ढूंढ रहा था कि मेरे को ऐसा बंदा मिले कि भाई थोड़ा सा तो कोई तो रिवर्स ये ले, कि भाई पूरा पूरा मतलब 1-1.5 साल पहले, तो पिछले मतलब 22 की बात है ये, जब भी शरद सर ने स्पेसेस चालू करना स्टार्ट कर दिया था, कि तभी से मैं जुड़ा था. अभी मैंने एक दिन बात किए थे, तो मुझे ये पता नहीं था कि भाई माइक्रो भी कुछ होता है, कि एम्प्लॉयमेंट के रिटा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं. ये मुझे कुछ पता नहीं था तभी. तो मैंने उस पर स्टडी कर किया. उसमें बहुत मतलब मैंने मेरा एफर्ट भी डाला उसमें. और शरद सर ने भी मतलब मैं स्पेसेस तो सारे सुनता हूँ शरद सर के, आपके समर सर, कि सारे स्पेसेस सुनता हूँ. कि मुझे नहीं पता था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मतलब कैसे स्टॉक मार्केट रन होता है. जो जो बुक में लिखा रहता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज में से तो मेरे को कुछ नहीं पता, मतलब नहीं पता रहता है. या कोई किसी मतलब शरद सर ने भी बताया तो ये करना है, तो उस पर इम्प्लीमेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने इम्प्लीमेशन किया, मेहनत की उस पे कि क्या करना चाहिए, तो उससे का मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. अभी मेरा क्वेश्चन शरद सर से और ये है कि मुझे ये कभी कभी पता चलेगा कि रिवर्सल साइन रहेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे, वो कैसे पता चलेगा? अब पेपर में शरद आएगा, सर से न्यूज़पेपर में आएगा. पेपर पेपर में आएगा. और ठीक है सर, थैंक यू सर. मेरे को यही क्वेश्चन है, और मुझे यही था कि मतलब जो इकोनॉमिक्स माइक्रो चेंज होते हैं वो पेपर में से ही पता चलेगा. चलेगा, थैंक यू सर. सर और कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास पेंडिंग. मेरे पास 5 है. ले लीजिए सर, मेरे को तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है. अजिंक्य जी बोलिए. Hello, thank you, sir, for giving me opportunity. So I just want to know
कि अभी जो मार्केट जो है और जो गोल्ड का जो मार्केट है, तो गोल्ड के रेट्स भी ऐसे स्पेकुलेशन है कि दिवाली के आसपास 70+75 के आसपास टच होंगे, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू रहेगा, यही जानना था। थैंक यू। नहीं, लगता है ज्यादा ही बढ़ेगा उससे। अच्छा सर मुझे ये जानना था, हेलो हाँ बोलिए ना। सर, मुझे ये जानना था, मेरा पोर्टफोलियो फिलहाल 10 से 12% डाउन है और फिलहाल मैं कैश पे भी हूँ सर। मैं आगे निवेश करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ एक फार्मा सेक्टर है और एक एनर्जी सेक्टर है, जिस पे मुझे लगता है कि रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्या सर मुझे वो लेना चाहिए? और फिलहाल जो मेरा पोर्टफोलियो डाउन है उसमें सारे लार्ज कैप ही है सर, कोई मिड कैप या कोई स्मॉल कैप नहीं है। मैं इसको लंबी अवधि के लिए, आई मीन के 3 से 4 साल के लिए एटलीस्ट मैं अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सर सजेस्ट करेंगे मुझे? क्या सजेस्ट करूं? फार्मा और एनर्जी सेक्टर के लिए सर हो सकता है निवेश, ये एक टर्न अराउंड हो सकता है यहाँ से सर, नहीं अगले मुझे आने वाले 3-4 साल के लिए। नहीं, एनर्जी और कौन सा फार्मा, हाँ सर, मुझे सख्त नफरत है। दोनों सेक्टरों से। हाँ, तो सर मुझे सजेस्ट करेंगे यार, अगले आने वाले 3-4 साल के लिए मुझे एक अच्छा एसआईपी मॉडल, एसआईपी के थ्रू एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, तो कुछ कौन से सेक्टर्स मुझे सिलेक्ट करने चाहिए सर? अब 5 लाख रुपया दो मुझको, हाँ मैं सिलेक्ट करके सर सर सेक्टर तो बता दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो सुधरे पोर्टफोलियो भी। इंडस्ट्री 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 कौन सा सर? समझ है इंडस्ट्रियलाइजेशन एबीबी सीमेंस जैसा कोई इंडस्ट्रियल कंपनी हो ना, वो आप परचेज कर सकते हो सर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। एबीबी सीमेंस, इंगरसोल, कमिंस। अच्छा, यानी इंडस्ट्री में ही मुझे करना है। हेलो Sir, very good evening, sir. Rahul here, sir. Sir, actually, I want your valuable opinion about the market psychology, sir. I know, sir, you are the rich in this field, sir. So, little bit focus on market psychology, how this reacts and works. Psychology meaning what? Sir, bulls and bear movement, how they think during the market and It's a how. vast subject, yaar. Can't be discussed on space here. Psychology of market. You have money, But sir, you buy. You make money, you sell. You lose money, you sell. Again you buy. That's how market goes on. Nothing new. right, right, sir. It's Thank a you. very large topic question here. I can't handle it in this space. Right, sir. Thank Yeah. you, sir. Great, sir. Good evening, sir. My name is Nandesh, Hmm. joining from Bangalore. Sir, I am following from last 3 months. Is it worth to hold CG Power and Jain Irrigation for a period of another 2 to 3 years time? CG Power And Jain Irrigation, yes, sir. वो चाइन इरिगेशन का तो आज टेक ओवर का कुछ है ना. Yes, sir. Yes, sir. I don't know the company, but टेक ओवर हुआ तो अच्छा ही होगा. Okay, sir. How about CG Power, sir? Hold it. Because I'm holding this one from from 18 rupees. Yes. It's okay. Very much okay. Thank you, sir. अभी कौन है? रमेश भाई. सर बोल सकता हूँ? हाँ यस सर. बोल. सर गुड इवनिंग सर.
सर आपने एक एमएनसी स्टॉक के बारे में कुछ बोला था सर, लेकिन एमएनसी स्टॉक मोस्टली सर हाई पी पे चल रहे हैं सर, तो क्या तो भी ले सकते हैं उसको? रमेश भाई, आप भी ऐसा सवाल पूछोगे? सर सर ये थोड़ा मैं चेक किया था तो क्या सभी मतलब कोई लो लो पी वाला दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं सोचा, थोड़ा डर रहा था फिर मैं लेने के लिए। सर मतलब बड़ाई नहीं मारता हूँ। हाँ सर। मुझे मेरी लाइफ में सब चीज अच्छा चाहिए। अच्छा मेरा जूता आता है 2-3 लाख का, अच्छा सर। शर्ट आता है 1.5 लाख का, अब अच्छा सर। पटलून जीन्स आता है 1.25 लाख का। अच्छा सर। तो अच्छा चीज महंगा ही होता है सर। ओके सर। यस यस। सस्ता समझ के लेना मत कभी, आप फंस जाओगे। ओके ओके सर। आप ओके महंगा सर। लोगे ना, यस सर। गारंटेड है, क्वालिटी गारंटेड। हाँ नहीं ओके सर। रमेश भाई, एक बात यस सर। बोलने का है तेरे को। हाँ सर। लाइफ में यस सर। अगर शान से जीना है हाँ सर। और लंबा जीना है, हाँ सर। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, नथिंग एल्स। यस सर। यस सर। यस सर, आई एग्री सर। यस सर। मैं दवाई भी लेता हूँ डॉक्टर से, तो वो मेरे हाँ को सर। एमएनसी का ही दवाई लिख के देता है, अच्छा सर। समझा? और नहीं मिलता बट है सर। तो बाहर यस सर। से मंगाता यस सर। हूँ। तो यस सर पॉइंट, हाँ बट बोलिए सर। एक्चुअली क्या सर, हम जो इंडियन है ना सर, हम मतलब ऐसे, हमारा मतलब हमारे ब्लड में क्या है सर, सस्ता ढूंढने का जो हमारे ब्लड में है ना, तो आदमी कुछ भी सस्ता ही ढूंढता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं बोल रहा था। नहीं, देखिए मैं भी इतना ही इंडियन हूँ जितने आप है, यस लेकिन सर। एक सोच है मेरी कि अभी दुकान पे जाता हूँ तो शैम्पू लेता हूँ, अब पता नहीं कितने हाँ का सर। आता होगा। ऐसे ही वो बोलेगा 100 रुपया, ये 150 का है, 200 का है, और ये 300 का है, तो मैं 300 वाला ही लेगा। हाँ हाँ यस सर। आप समझा? मैं मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं है शैम्पू में क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन महंगा है तो हाँ अच्छा ही होगा, यस। दैट फिलोसॉफी। अच्छा सर। और रमेश भाई, आज के यस सर। बाद एक फिलोसॉफी रखो, ओके सर। जैसे इस्लाम में है। इस्लाम में हाँ हाँ। वो लोग जो प्रार्थना करता है या जो भी बोलता होगा, ओके। वो क्या बोलता है? या अल्लाह, खर्चा बढ़ा, या अच्छा। अल्लाह खर्चा बढ़ा। अच्छा, ओके। तो जब आपके पास में ज्यादा खर्चा करने की ताकत आएगी, इसका मतलब है कि हाँ तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो बढ़ेगी। वो यस। लोग ये नहीं बोलते कि आप मेरा इनकम बढ़ाओ। इनकम बढ़ाओ। यस। सो यस। मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ एंड यू विल एंजॉय ओके योर सर। लाइफ लाइक मैड लाइक। आप मुझे देखो, ओके सर। कितना इतना हो गया उम्र, फिर भी मस्ती में जीता हूँ। यस 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 और यस। क्वालिटी चीज लेगा ना, लाइफ में प्रॉब्लम हाँ नहीं आएगा। यस, सही बात है सर। और यस। बताओ रमेश भाई। बस सर, थैंक यू सर, आपका सर नॉलेज, क्योंकि आप इस फील्ड में वेटेरियन है, और नॉट नॉट सर शेयर बाजार, आपकी जो जनरल बातें भी है मतलब लाइफ के बारे में, वो भी रियली मतलब इंस्पिरेशन देते हैं हमारे जैसों के लिए तो। नहीं रमेश भाई, ये ऐसा ना कि अगर मैं लाइफ पे चर्चा करने बैठूं ना, तो हाँ बहुत कुछ सर। बोल सकता हूँ, बट इट इज हाँ हाँ बिसाइड्स यस सर। द टॉपिक, तो यस कोई यस। मतलब नहीं है। नहीं नहीं, सही बात है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। Yeah, मिसल। थैंक यू सर। ये रमेश सर से आपका कन्वर्सेशन सुना,
बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर नाइस एडवाइस सर। और सर एक सॉरी भी बोलना है, आपने वो पोल भेजा था लेकिन मैं बहुत लेट देखा तो वो टाइम भी खत्म हो गया था, तो उसके लिए सॉरी सर। बस मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कैसा मार्केट अगले 5 से 10 साल बिहेव करेगा, क्या करे, और ये क्या निफ्टी भी और ज़्यादा बहुत नीचे जा सकता है, चांसेस है, थोड़ा कुछ उस पे बताइए। समत बोल दे। क्या बोला आपने सर? हाँ जी, हेलो। कि अब अगले 5 से 10 साल तक अगर इन्वेस्ट करना है अच्छे क्वालिटी स्टॉक जैसे मारुति है, स्टेट बैंक है, तो लेके छोड़ दें कोई मतलब, और निफ्टी, और अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो कितना बहुत नीचे जा सकता है? नहीं नहीं, लेके आप छोड़ दो, या हाँ सर। आप उसको छोड़ दोगे या वो आपको छोड़ देगा, दोनों में से एक होएगा। अच्छा, हाँ सर। ओनली नीरो भाई इंडस्ट्रियल्स इंडस्ट्रियल्स इंडस्ट्रियल्स, बस उसमें इन्वेस्टमेंट करो। इंडस्ट्रियल लॉन्ग टर्म के लिए। यस, एमएनसी कोई इंडस्ट्रियल्स। फैक्ट्री बंद नहीं होगी, कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री है वो बंद नहीं होगा, अच्छा सर। इंडस्ट्री हाँ बंद नहीं सर। होगा, बैंकें बंद हो जाएगी, लूट जाएगी। ओके सर। हाँ, ओके। मारुति का मॉडल नहीं चला तो दूसरी कंपनी आ जाएगी, वो सब मत लो। अच्छा सर। और नीचे जा सकता है बाजार अभी बहुत ज्यादा कभी भी? हाँ, बहुत जाएगा नीचे और ऊपर भी जाएगा। अच्छा सर। ये देखिए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब नसीब का खेल है। हाँ सर। मैं बोलता हूँ निफ्टी 12,000 है और 17,000 में मैं लॉन्ग हो जाऊंगा, अच्छा। और फिर मेरा धनोत हो जाएगा। क्या मालूम, ये ये सट्टा एक एक चंचल चीज है। आज मैं बोलता हूँ मैं बेचता हूँ, और 5 मिनट के बाद में पता चला आपको कि मैंने लॉन्ग किया है। ऐसा है सट्टा बाजार। आप एक सट्टा बाजार का परिभाषा समझो, सट्टा, उलट पुलट उलट पुलट। So nobody knows anything. मैं होशियार बन के बोलूं ये होएगा वो होएगा, फालतू का बात है। बट मीन रिवर्जन से हिसाब से 12,000 आएगा, उतना भी मालूम है मुझे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। या मिसल जी बोलिए। हेलो हेलो शरद सर, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये बताओ आपकी मतलब डिफेंस जो सेक्टर है उसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारी कंपनी को अभी लार्ज ऑर्डर्स भी मिली है गवर्नमेंट से डिफेंस में। हाँ, ले लो ले लो। हाँ, लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। और नीचे जाए तो बेच देना भाई, घबराना मत। ठीक है सर। ओके। या गौरव बोलिए। गौरव जी बोलिए, विवेक भाई बोलो। Thank you, Samarth. Thank you. Am I audible, Samarth and Sharad bhai? यस यस So यस Sharad यस। sir, I was listening to you. I was listening to you कि जिंदगी में चीजें अच्छी लेने का, and you also mentioned that you buy medicine for MSD. तो एक MSD का दवा मेरे को मिल नहीं रहा, मैंने बहुत देखा, पूरा दिल्ली छान मारा। And this is a nasal spray that I use. I have been using it for last 5-6 years. And I had generally tend to have a very clogged nose, so I use that nasal spray. Nasonex ये आना बंद हो गया है, तो मैंने पूरा, हाँ, तो आई एम राइटिंग टू माय फ्रेंड्स इन US as well
and it's very effective. I can send you the name of my prescription that doctor had given me, and if you could get it for me, for MSD. I'm also a big fan of MSD, by the way. Also, MSD meaning? हाँ बोलिए सर. नहीं, MSD मतलब क्या? MSD is the Merck, the pharma company. हाँ. ये सर मर्क का आई थिंक पुराना ये नया नाम है. I think MSD is the marketing company for Merck. Yes. So, sir, on अरे other, भाई, मेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को कुछ भी मांगता है ना, अपना दोस्त लोग है तो आ जाता है. ग्रेट. अपने पास किधर नॉलेज है यार. मैं तो पूरा अंगूठा चाप है. यहाँ का जो आता है ना, ये सब बिल्कुल आई डोंट नो, इधर जेनेरिक मार्केट है, सो बेकार दवा है बिल्कुल. यहाँ पे आप बिल्कुल सही बोलते हो, क्वालिटी के पीछे जाना चाहिए. नाउ आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन द मार्केट and on the big event that we have. I earlier also asked about it. So we are looking ahead. We are gearing up for the central elections in 2024. And if I were to take a call, let's say an event call, and if this event is a contrarian call, the general perception we know is the current suspension would continue and they would continue forever. So, but if I were to take a contra call, what probability would you assign to it? मैं बोलूं? 30%, no. 30%. Okay, sir, that's a very good probability, and it's only a start of it. So I think I'm thinking in the right direction, because I think current suspension might just fall short of what they are looking for, or maybe they might go they might be short of anyone to support them. That's what happened with their earlier central government when they formed at the time of Vajpayee. I'm a big fan of Atal Bihari Vajpayee, by the way. I respect BJP. I respect everyone, those who are the great leaders, irrespective of the party lines. So I'm a apolitical person. And another, sir, ये बाजार में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, but silver is breaking out these days. So it's like 72 जो August, June के futures हैं, they are quoting at like 75K. So it's a big long, and I'm trying to go long on it. So it's again, we are in agreement on that. So thank you, sir. If you are long or you will be long? I will be long, sir. अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी जो करंट अप्रैल का नियर फ्यूचर है वो 72 के करीब चल रहा है. 72, 72.5 चल रहा है. अभी मैंने भाव देखा नहीं आज. थोड़ा मुझे को नौकरी भी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, तो लेट नाइट पे कॉमोडिटी ही करता हूँ मैं, स्टॉक ज्यादा करता नहीं. But it's a very good exercise. It actually makes your heart very strong, or rather, I will be a heart patient or something like that, because I traded natural gas as well. जब ये यूक्रेन वाला हुआ था तो बड़ा मजा आया उसमें. It was very thrilling. I made some money in natural gas. मैं 500 किलो सोना खेलता था, 30,000 किलो चांदी खेलता था, तो कुछ होता ही नहीं था मुझे. नहीं, मेरा तो सर, आपका सर वो आप ही वाला कलेजा डेवलप करना पड़ेगा ना मुझे. आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑन कमोडिटीज. अभी मुझे 1-1.5 साल ही हुआ है कमोडिटी करते करते. तो अभी दिल कलेजा निकालना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा इसको. जिम से तो नहीं होगा, ये तो आई नीड मोर प्रैक्टिस ऑन इट. अभी 5-6 लॉट से करते हैं, फिर 50 लॉट से करें, तब मजा आएगा. अरे मार देना 100 लॉट बिंदास, क्या है. अरे सर, अभी तो देखना पड़ेगा, अभी घर बार भी तो देखना पड़ेगा, अपनी रिस्क भी तो डिफाइन करनी है ना. रिस्क डिफाइन करके ही काम करेंगे ना सर. ठीक है. और सर या गौरव जी, हाँ बोलिए विवेक भाई. हेलो, गुड इवनिंग सर. एक मिनट सर बोल. हाँ एक मिनट विवेक जी बोलिए.
शरद सर, ये आजकल ये मैंने पीछे भी पूछा था, ये QSR वाला ये जुबिलेंट क्यों नहीं चल रहा है भाई? इसका क्या हो गया? ये क्या कंपनी के लोग पिज्जा नहीं खाएंगे क्या? या लोगों के पास पैसा नहीं बचा पिज्जा खाने के लिए? इतना इन्फ्लेशन हो गया क्या? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग खत्म हो गया क्या हिंदुस्तान में? हाँ, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया और कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ओके सर, ओके। So, sir, but on a trajectory of 5 years, or let's say for 6 years or 7 years, where do you see these dominoes? They would be in every nooks and corners of India. I believe in they are expanding like anything in Nepal. इनका एक अदर अपना भी franchise है, like जिसमें वो चाइनीज बेचते हैं। नहीं भाई साहब, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो फ्रेंचाइजी है और जो प्रोडक्ट है, वो कितने साल चलेगा नहीं चलेगा, वो मार्केटिंग ट्रेंड के ऊपर है। तो किसी को लगता है कि वो डोमिनोज अभी चलेगा नहीं ज्यादा, तो वो बेचता होगा। और जस्ट एन एग्जाम्पल कि 3 साल के बाद उसको लगता है कि कोई और पिज्जा वाला चलेगा, वो मुझे मालूम नहीं है ज्यादा। अब बच्चा लोग लेके आता है, अरे बच्चा लोग लेके आता है, बच्चा लेके आता है, तो आई डोंट नो। बट मेरा जो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आई सी इन डोमिनोज, kids or even somebody who I would not think would go to Domino's and purchase pizza, looking at what they are doing, what their sphere of life is. तो वो भी डोमिनोज में जाके पिज्जा खाता है 200 रुपए का। नहीं, Man, बट the quality has gone bad now. हाँ, इट्स वेरी बैड। Quality has gone bad quite significantly. टोकन साइज घटा भी दिया इन्होंने थोड़ा, नहीं, काफी 500 रुपए का तो बेचते हैं वो पिज्जा, ठीक है। मीडियम पिज्जा कम से 500 रुपए। You spend another 100-200 bucks extra, you'll get a pizza from a good bakery. Like let's say in Bangalore, you have something called Pizza Bakery, which is very very good. So competition is also too much. वो कंपटीशन भी है और ऑप्शंस बहुत हो गए। अग्री टू दैट। विवेक जी, मेरे घर के बाजू में 6 पिज्जा वाले हैं, पापा लुई, ला मार्टिनोस, फिर ये US पिज्जा, कितने हैं स्टोर। अरे तो समर्थ एक मंगाओ ना सबसे। अरे समर्थन में, पर मुझे लग रहा है दिस इज पिज्जा इज गोइंग टू बी समोसा फॉर आवर, मतलब मैंने तो देखा है मेरे नेफ्यूज नीज दे ऑल क्रेव। मैं बचपन में समोसा खा के खुश होता था, आज लोग पिज्जा खाते हैं, वो बच्चे कहते हैं पिज्जा मंगाओ मामा। सही बात है। तो जनरेशनल वो तो चेंज हो ही रहा है। हाँ, तो वी डोंट नो ना नेक्स्ट जनरेशन को क्या पसंद आएगा। हाँ जी सर, इट्स अ वेरी हमारे लिए तो विवेक भाई, हमारे लिए तो गुजराती में we have घुघरास also. So Domino's has launched one pizza called Gourmet Pizza, and then they are selling it for $1,000. Oh gosh! For a medium size. So just imagine, why would you pay $1,000 for a Domino's? You'd rather go to 5-star and have pizza, right? Yeah. Agree. Anyways, I shared my thoughts. I got your views as well. Thank you so much. Thank you, Sharad sir. Always pleasure talking please to you. welcome. Yep. Thank you, Vivek ji. Yeah, UK. समर सर गुड, UK बोलिए समर सर गुड इवनिंग सर। सर को भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। समर सर, एक MSTC स्टॉक है ये गवर्नमेंट की सब स्क्रैप इकट्ठा करती है MSTC। जी सर। गवर्नमेंट की सब जो स्क्रैप होती है ना, गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका टेंडरिंग और सब वो प्रोसेस करती है स्क्रैप का। सर ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है और इसको नहीं लेना? बढ़िया ले लो। समझ सर, आपकी राय क्या है?
सर ले सकते हो और डिविडेंड मिलेगा बस। ओके सर, ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ओके सर, थैंक यू सर। यस हेलो। यस सर। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम 35 years old and every month I have around 1.25 1.5 lakh of investable income from my salary, excluding PF, NPS and expenses. So what should be my method to market or to wealth preservation as well as creation? See, this is a very personal question. आप मेरे को डीएम कीजिए सर। ओके, बट लाइक जनरल टर्म्स में, आई मीन आज एक अगर मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्ट करना चाहे, वेयर सर कैन आई आस्क योर एनुअल इनकम? या इट्स अबाउट 40 lakhs एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। आपका 8 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए। ओके, No, 50 lakhs का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। gentlemen, why don't you DM him instead of talking in public? DM him. हाँ जी, नहीं, I want general direction सर, की मतलब म्यूचुअल फंड रूट जाए, मतलब No, not but personalized. I'm not looking for that. are you hell bent on having it in public? No, not public. I just want like what open perspective. Yeah, की, so I'm saying how you DM him. No, he will give you a better idea. Okay, no, perfect, makes sense. या गौरव जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मेरे एक फ्रेंड है, वो पहले बॉम्बे में कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग का काम था उनका, तो अभी वो 2016 में अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग बंद करके आ गए। तो हमने और उन्होंने साथ में ही जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ में इंश्योरेंस में डाला था पैसा, और वो फिर हमने बाद में हमारा मैच्योरिटी आ गया तो हमने निकाल लिया। तो मैंने उनको, कल मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि यार फिर से इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, अब बॉटम बनने की उम्मीद लग रही है। तो उनका कहना था देखो यार, मैं तो नहीं डालूंगा, क्योंकि 2014 में भी जो है मोदी आया तो कोई खास मार्केट में बाउंस नहीं आया, 2019 में भी कुछ नहीं आया, तो मुझे लगता है कि 2024 में भी कुछ आएगा नहीं अभी, तो इसलिए अभी वेट करते हैं। तो मेरी शरद सर से वही एक उनसे वो था कि क्या आपको क्या लगता है 2024 के बाद क्या मतलब कुछ बड़ा बाउंस आने की उम्मीद आपको लग रही है, या वाकई उनकी बात सही? सर उनका तो 10 लाख था, मेरा 5 लाख था। तो मैंने उनको बोला कि यार फिर से इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो नहीं, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार इलेक्शन में आपने देख लिया कुछ नहीं आया। मोदी आया इलेक्शन में तो कोई बाउंस नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट 7,000 से 10,000 हो गया, मार्केट वहीं का वहीं था। और ऐसा नहीं हुआ 2019 में भी कि मार्केट 12,000 से 18,000 हो गया। वो तो जब अमेरिका में वो आया कि जीरो इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था, तो FIS आया और लाके डाल दिया पैसा उन्होंने, उससे मार्केट 12 से 18 हो गया। नहीं तो उसके आने का कोई फायदा नहीं है। और वो तो लोगों को चूस रहा है। वो तो 2016 में मैं धंधा बंद करके अपना आ गया बॉम्बे से, तो उसके पहले तो मैं लाखों कमाता था। 2016 के बाद तो खत्म ही हो गया धंधा। तो मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं, अगर वो दोबारा आया तो बैठ जाएगा। गौरव जी आप IRCTC में डाल दीजिए ना पैसा। किसमें सर? IRCTC में। अरे नहीं सर, IRCTC का तो मुझे पता है। जब रिजर्वेशन आपको 2 घंटे पहले मिल रहा है, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में, ऐसे IRCTC में पैसा डाल के क्या फायदा? रेलवे की हालत वैसे ही अच्छी नहीं है, बस ट्रेनें चलाए जाओ, हालत तो वैसे ही हिंदुस्तान की खराब है। जो वो मुझे, वो तो MSME सेक्टर से बहुत अच्छा वो बताता था मुझे कि उसकी 70-80 सिंगर मशीनें चलती थी, और 2016 में तो उसकी 12-15 रह गई थी, और वो 2016 में तो बंद करके आ गया। अभी वो प्रॉपर्टी वगैरह का काम करने लगा। तो वो खुद ही बोल रहा था कि मतलब उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, आने के बाद धंधा ही खत्म हो गया। अब मेरे पास तो जो सेविंग्स है मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। तो वो उसका वही तो। शरद सर आप बताइए, आपको क्या लगता है 2024 के बाद क्या मतलब बूम आएगा, या मतलब ऐसी मार्केट ठंडा रहने वाला है? नहीं आएगा, बूम आएगा। कांग्रेस आ गया मतलब तो अगर मोदी आया तो भी बूम आएगा? नहीं मोदी आया तो ज्यादा तो 99% चांसेस तो मोदी के ही लग रहे हैं ना। हाँ, तो अगर ये आया तो भी आएगा? नहीं कांग्रेस आएगा तो आएगा।
हाँ, वो तो उसका मानना है ना सर, वो तो वो खुद कह रहा है कि कांग्रेस आएगा तो आएगा, लेकिन मोदी का 4 से ज्यादा है, इसलिए मैं पैसा नहीं लगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या बोलिए अंजाना। थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना है एक्चुअली, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है ट्रेडिंग करते हुए या इन्वेस्टिंग करते हुए। मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, तो कुछ पैसा गवाया भी है, थोड़ा बहुत कमाया भी है। बट मैंने कभी सीखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैं, आप सभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सर सीखना कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इंटरनेट इतना फुल ऑफ रिसोर्सेज है, फ्री कोर्सेज, यूट्यूब, बुक्स, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर नहीं मिल रहा है इन्वेस्टिंग या टेक्निकल्स फंडामेंटल सीखने के लिए। तो एनी सजेशंस कि किसी को स्टॉक मार्केट अगर सीखना है तो कहाँ से स्टार्ट करे, क्या अप्रोच होनी चाहिए? समझ। हाँ हाँ, आ रही है अंजाना जी। आपने बोला ना ये अभी जो क्वेश्चन था वो आपने पूछा ना? जी। आप कितने साल के हो सर? सर 28। आप सर्विस करते हो या ये फुल टाइम ट्रेडिंग है आपका? नहीं नहीं, मेरा प्राइवेट जॉब है कंसल्टिंग में। सर तो एक जेन्युइन आपको सजेशन देता हूँ। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर जॉब। जो आप वहाँ पर कर रहे हो 10 to 5 का जॉब है या 10 to 7 का है, यू प्लीज स्टिक टू इट, क्योंकि दैट इज योर मेन ब्रेड एंड बटर। यस बाकी डेफिनेटली। आप जो पैसा कमाते हो वहां पर 10 to 7 या 10 to 6 के जॉब में, उससे आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा बनेगा। ट्रेडिंग से पैसा कभी नहीं बनेगा जो आप सोच रहे हो। देयर इज नो शॉर्टकट टू मेकिंग मनी। तो प्लीज आप अभी जो काम कर रहे हैं उसके वो आप स्टिक टू द बेसिक्स, और वहां पर आप चालू रखो आपका काम। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप ट्रेडिंग करोगे और वहां पर लॉस होगा ट्रेडिंग में, तो योर मेन जॉब वुड बी एट रिस्क। आप वहां पर कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाओगे, एंड यू कैन नॉट राइड 2 horses एट द सेम टाइम। नहीं, और वापस आप भी ट्रेडिंग में आओगे तो हमारे लिए आप कंपटीशन हो जाओगे। तुम रहो ना अपना जॉब में और अच्छा शेयर ले आओ, वही सबसे बड़ा एक्टिविटी है आपके हेलो लिए। सर, अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ हेलो। बोलिए भाई, बोलिए। हाँ समर्थ भाई और शरद हाँ भाई, बोलो। नमस्कार। एक मिनट, इनका खत्म नहीं हुआ, आप चालू। कौन बोल रहा है अभी? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। अंजन भाई का हो गया, चलो उसको निकालो। अंजना। हाँ, अभी कौन बोल रहा था? विश्वास। हाँ, विश्वा, बोलिए सर। यस यस, मैं ही बोल रहा था, सॉरी डिस्टर्ब किया आप लोगों को। एक्चुअली सर, मुझे निफ्टी के बारे में कुछ बोलना था। नहीं नहीं, नहीं बोले। अभी सब लोग मार्केट के डिस्कशन नहीं के बारे में बोलने बात कर रहे देगा हैं। निफ्टी का कोई बोल बात। रहा है कि मोदी समझ रहेगा ने तो मार्केट चुप बढ़ेगा, रहे। मतलब लोगों का। यस सर, डन। ब्रिजेश भाई, ब्रिजेश दोषी जी, ब्रिजेश दोषी जी। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग, बोलिए सर। गुड इवनिंग, नमस्कार शरद जी, नमस्कार समझ सर। बोलिए सर, बोलिए। सर मुझे इथेनॉल ब्लेडिंग में अभी जो शुगर स्टॉक सेक्टर में जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानना है। क्या आपको लगता है शुगर स्टॉक्स के रिगार्डिंग कुछ? शुगर अभी 22 सेंट हो गया है, शुगर में तेजी होगा। ओके सर, इसके रिगार्डिंग से थैंक यू सर। अच्छा, इथेनॉल, इथेनॉल के लिए तेजी नहीं होगा, शुगर के लिए तेजी होगा। इथेनॉल ओके अभी साइड में रख दो सर, शुगर में ओवरऑल तेजी लगा है। ओके, बिकॉज बहुत टाइम से सर वो नीचे चल रहा है अभी इसीलिए। ऊपर आएगा सर, डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके सर। अच्छा, और नफा ओके सर। होएगा अच्छा, तो हमको देना थोड़ा। आप श्योर जस्ट, सर। ब्रिजेश भाई आप जस्ट ट्रेक करो। जो शुगर का जो आता है मार्केट में, डीमार्ट में शुगर के प्राइसेस जो आते हैं, ये अपने जो 5 किलो का
श्री शुगर का आता है, तो उसका पैकिंग का प्राइस हमेशा हर महीने देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इट इज अ बेसिक वे ऑफ सीइंग। ओके सर, मधुर श्योर। मधुर मधुर शुगर का आता है, तो मधुर शुगर का हाँ 5 किलो का पैक हमेशा देखने का। नहीं तो है जाके ना, एक ऐप है investing.com करके, उसमें आपको शुगर का भाव मिलेगा। नहीं, सच बोलता हूँ। ओके सर। और हाँ, आता कमोडिटी है सेक्शन में आपको शुगर का भाव मिलेगा। शुगर मिलेगा। तो मैं किधर देखा, ओके। मैं भी उधर ही देखा। हेलो। हाँ, बोलिए। और शरद सर, लाइफ में एक बार आपको मिलने का मौका मिलेगा तो बस, दूसरा कुछ नहीं। 1.5 लाख रुपया दे, मिलेगा। हाँ हाँ, कोई बात। हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो फिर, अब कौन है? श्रीकांत जी बोलिए। हाँ, रुद्रेंद्र जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, मुझे सर पूछना है हेलो। बंधन बैंक और वोल्टास के बारे में। श्रीकांत जी बंधन एक बैंक मिनट। हाँ बोलिए रुद्रेंद्र जी। मुझे सर बंधन बैंक और वोल्टास के बारे में पूछना था, आपका व्यू क्या है? क्योंकि आपको क्या करना है बंधन बैंक, रुद्रेंद्र जी, आपको क्या करना है? मुझे इन्वेस्टमेंट करना है मिड टर्म के लिए, शायद 1 साल और 2 साल। हाँ, तो बंधन बैंक क्यों चूज किया आपने? बंधन बैंक मुझे मतलब उसका बिजनेस स्टाइल अच्छा लगा, इसलिए मतलब वो आप कहाँ से हो, 18% में। बंगाल से हो क्या? बंगाल से हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसलिए वहां पर आपको सभी जगह बंधन दिखेगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ईस्ट बंगाल। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। बट आप इन्वेस्टमेंट करना 30-40 रुपए होए ना बंधन बैंक, तब डालना पैसा। 30-40? हाँ जी, 30-40 के आसपास आप डाल सकते हो। अच्छा, और वोल्टास के बारे में आपका क्या व्यू है? 400 होएगा तो ले लो। वोल्टास, हाँ 250 से 400 के बीच में डाल देना। अच्छा, और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो उसमें कुछ पूछ सकता हूँ? आप पूछ लो, आज मूड में है, वो पूछ लो। हाँ, मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल लेता हूँ। सोचिए, निफ्टी 18,000 होगा तो मैं 17,900 सर और जवाब देना, सर जवाब देना, आप मूड में हो। 18,100 का मैं स्ट्राइक ले लेता हूँ। तो वहां पे जो लेग जो करने के बारी आता है, तो मैं ठीक तरह से एग्जिट नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ सजेशन आप दोगे, जैसे मैं मेरा स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ? अब पहले है ना, ये जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करता है ना, तो पेपर ट्रेडिंग करो, मशीन पे ट्रेड मत करो, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। हाँ सर। और आपका पैसा, हाँ सर, होता। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, बोलिए बोलिए नहीं बोलिए। तो आपका पैसा भी बच जाएगा और सीखना भी हो जाएगा। अच्छा। हेलो। और ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। या राजेश जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। बोलिए शेषाद्री जी बोलिए। मेरा 2 स्टॉक के बारे में थोड़ा जानना था। एक है इजजेक हेवी इंजीनियरिंग और दूसरा है ग्रीव्स कॉटन। मेरा इन्वेस्टमेंट है इनमें, तो आप थोड़ा कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। इजजेक हेवी इंजीनियरिंग। वो मालूम नहीं है मेरे। वो तो मैंने भी नहीं सुना कभी। अच्छा, दूसरा है ग्रीव्स कॉटन। अच्छा, बिट्स कैन। अभी शेषाद्री क्या भाव है उसका? 129। 130 हाँ याद है मेरे को। अच्छा, 200 के ऊपर जाए तो लेना। 240 नहीं, 240 का हाई था इसका। हाँ 210 के ऊपर जाए ना तो ही लेना। ठीक है, ओके। और ले रोशन जी बोलिए आप। हाँ सर, नमस्ते सुमत सर, नमस्ते शरद सर। यस सर को सर। नमस्ते। सर मैं थोड़ा इधर
आप लोगों के सुझाव से कुछ पैसा बना लिया हूँ सर ऑप्शन से, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इन्वेस्ट कर दूं, कहाँ पे अच्छा रहेगा सर? 7-8 लाख लगभग गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड। है। कितना पैसा है? क्या सर? कितना पैसा है बोल रहे हैं? समथिंग 8 लाख 7 लाख। सीमेंस ले लो। क्या सर? सीमेंस आवाज एबीबी, क्लियर है। इंडस्ट्रियल्स रोशन जी ले लो। इंडस्ट्रियल स्क्रीनर में जाओ, screener.in में जाओ, वहां पर इंडस्ट्रियल्स है ना, उसको सर्च करो, उसमें एबीबी सीमेंस जो भी कंपनी, कमिंस, इंगरसोल, रैंड, उसका ले लो स्टॉक। और एक सर थोड़ा सा सुझाव चाहता हूँ सर, ये जरा थोड़ा, ये मैं स्पेशली सिर्फ फूड का ही सर सर ऑप्शन आपकी लेता हूँ। आवाज ठीक नहीं आ रही है सर, रोशन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। इफ यू आर यूजिंग हेडफोन तो आप वो निकाल दीजिए। मैं बोल रहा था कि स्पेशली सर बियरिश ही जाता हूँ हमेशा मार्केट में, तो अभी तो बियरिश बनना ठीक नहीं ना है सर, ये भी ठीक है? 5-6 तारीख के बाद कर लेगा बेरिश का। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो शैलेश सर। हेलो। हाँ राजेश जी मैं बोलिए। ये कह रहा था कि गवर्नमेंट ने जो चीनी एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि चीनी की फिर शेयर में पैसे कैसे कमाएंगे? एक्सपोर्ट तो बैन हुआ है यहाँ। यहाँ पर भी कहाँ बनता है चीनी अभी? नहीं चीनी सभी जगह पर चीनी बनता है इंडिया सभी जगह पर राजेश जी, सभी जगह पर बारिश है, कहीं पर ड्राउट जैसी सिचुएशन है, तो अभी और समर भी कहीं पर नहीं हो सेट हुआ है, कहीं पर ठंड अभी विंटर जैसा सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में सभी जगह पर स्टेपल्स जो भी है वो इतना है नहीं। लोग ये सब सवाल हमें क्यों, हमें उनको भी मालूम है कि इसको कोई बैन भी है या नहीं है। नहीं भाई सर, है ही नहीं अभी, गन्ना है ही नहीं कहीं पर सर। अरे अच्छा, तो पिछवाड़े में लगाएगा था, देखो सब्जेक्ट नहीं है, क्या बात करेगा। आप हमारा सब्जेक्ट पूछो ना सर। और कुछ राजेश जी? शिवी शर्मा। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। सर मेरे पास 2 स्टॉक मैंने ऐसे जो रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पावर स्टॉक है, IEX और CESC। दोनों जब भी मतलब 10-10% डाउन जाते हैं मैं फिर और लेता हूँ, एवरेज करता हूँ, उसके बाद फिर ये डाउन जाते हैं। ये मतलब क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा? IEX और दूसरा कौन सा? CESC। अच्छा, और आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो? आप सेलराइड हो क्या? हाँ जी सर। सेलराइड हो आप शिवी जी? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं के आप लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ से करते हो? इन्वेस्टमेंट जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आप हाँ जी सर। सैलरी से कमा के हाँ करते सैलरी से, हो? हाँ, सैलरी से। तो सर ये ने ऑलरेडी IEX के ऊपर तो बोल दिया है अपने टाइमलाइन पे। हाँ सर ने तो बोला है कि ये ऑन जाएगा, नीचे 50 के आसपास जाएगा। तो सर वही मेरा डाउट है कि फिर अब इसको आगे क्या करूं फिर, लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं यू रहेगा, हैव टू कहते हैं कि डिसाइड इसका आर। यू हैव टू डिसाइड सर। अच्छा सर, पर ऐसे जैसे कहते हैं कि आगे जाके वो ये डिमांड बढ़ेगी, पावर की डिमांड रहेगी, तो पावर के स्टॉक भी फ्यूचर अच्छा रहने का है, तो इसके बावजूद भी पावर स्टॉक नहीं चलेंगे क्या आगे? तो रखो सर, आपका व्यू है पॉजिटिव स्पीकर तो आप रख बोल, सकते हो। शेअर मार्केट मी कॅपिटल विचारते का? सोनं भांडार विचारू, सोनं भांडार का विचारू?
सोना और सर अंडे के विचार होगा। सीएससी का क्या रहेगा? सीएससी कौन सा? सीएससी सीईएससी वो भी ट्रांसमिशन कंपनी है। ठीक नहीं है? नहीं, आपको रखना है तो आप रख सकते हो सर। अच्छा सर, भैया सर मेरा 10% डाउन होता है, तब एवरेज करता हूँ, फिर ये और डाउन हो जाता है। इसका बॉटम ही नहीं पता लगता कब तक जाएगा। नहीं यार, ठीक है यार। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, कितना उम्र है तुम्हारा? 34। छोड़ यार ये सब लेना, बेच डाल कल सोमवार को। और एबीबी और सीमेंस ले, पावर में ही है वो भी, बेच डालिए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। शेखर। भारत 27X। राजू। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते शरद सर, समर्थ सर। नमस्ते सर, बोलिए सर, बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी ये पॉलिटिकल ईयर है इस साल का, तो लाइक इज देयर एनी वे कि हम इसको भी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हम कुछ पहचान सकते हैं कि आगे का पॉलिटिकल मूव कैसे होना है? जैसे मार्केट ऑलवेज मूव्स अहेड ऑफ द टाइम, राइट? तो हम ऐसा कुछ इंडिकेशन है क्या जिससे हमको पता चले कि किस यानी किस तरफ शिफ्ट होने वाला है पॉलिटिकल फ्यूचर? शरद सर, आपका पोर्टफोलियो कितने का है? सर अभी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, पहले करता था, लेकिन आई एम फुल्ली इनटू लाइक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स ओनली करंटली। तो फिर वो छोड़ो ना, जो भी होएगा बाजार का, काय को मगजमारी करता है। मुझे भी नहीं मालूम है क्या होगा। ओके ओके। इलेक्शन तक मार्केट टर्ब्यूलेंट, उतना मालूम है, और वैसा ही ओके होता है। ओके, थैंक यू सर। ये अभी अभय कुमार त्रिपाठी जी, बोलिए। हाँ सर, थैंक यू मौका देने के लिए। आप लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को। मेरा सर 2 क्वेश्चन है। समर्थ भाई, आप अगर ऐड कर सको कुछ। तो पहला है कि मैं कोविड टाइम पर कुछ शेयर लिया था काफी नीचे के लेवल पर। जैसे टाटा मोटर मेरे पास 80 रुपए का पड़ा हुआ है, अशोक लीलैंड 50 रुपए का पड़ा हुआ है। तो अभी सभी जब गिर रहा है, तो आप कुछ लेवल दे सकते हो जिसके आसपास मैं और एवरेज कर पाऊं नीचे, या फिर ये टाटा मोटर बेहतर और कौन नहीं है? सा? टाटा मोटर और कौन सा? अशोक लीलैंड। अशोक ले लेना 120, टाटा मोटर 380। नहीं, अशोक लीलैंड मैंने लिया हुआ 50 रुपए का, और टाटा मोटर लिया 80 रुपए का। भाई आप 380 का लेवल रखो रहो। टाटा मोटर 380 टूटेगा तो फिर कोई उसको हाथ में लेगा नहीं उसको, और 120 के नीचे अशोक लेलैंड लेगा नहीं कोई। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। और सेकंड थिंग सर, ये आपको ये सेक्टर कैसा लगता है? ये अंडर गारमेंट का, जैसे रूपा है, लक्स इंडस्ट्री है, काफी डाउन चल रहा है। बीच में कॉटन का प्राइस बढ़ गया था, तो इनके मार्जिन इफेक्ट हो गए थे, मगर कॉटन का प्राइस तो फिर नीचे आ गया है। तो अभी आपको क्या लगता है, अगले 1-2-3 क्वार्टर में क्या मार्जिन बढ़ेंगे, तो ये इनका भाव ऊपर जा नहीं सकता है? नहीं 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 नहीं। कॉटन डाउन है प्राइस, बट कॉटन का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए उसमें कोई है नहीं अभी। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान were the two controlling authorities which used to procure from us and then resell to India। यहाँ से लेते थे वापस, और वहां पर उनके पास चीप लेबर था, इसलिए वहां पर बनाते थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अभी वहां पर भी इश्यू चल रहा है, तो ये सब इंटरनल बहुत यानी nitty-gritty है, तो यू शुड स्टे अवे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या
सुमित पटोडिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू शरद सर। शरद सर को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, उनके रिकमेंडेशंस और मार्केट व्यू। समझ सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है पर्टिकुलरली। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट किसी स्पीकर को बोला कि 5th और 6th तारीख के बाद में, 5th और 6th अप्रैल के बाद में आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो सर ये थोड़ा आप टाइम साइकिल के हिसाब से बोल रहे हैं या नहीं मतलब नहीं व्हाट? नहीं नहीं, एक तो होता है अब एसआईपी की, जो 13,000 करोड़ का एसआईपी होता है अभी। ओके, तो मैक्सिमम एसआईपी सिटीजन्स क्या करते हैं, 1 से 5 के तारीख में रखते हैं। सेकंड थिंग इज की सैलरी जाती है सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो 25% मैक्सिमम इन द ईपीएफओ, जो भी पीएफ कलेक्शन होता है उसमें से 25% इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी मार्केट में। ओके, 55 लाख करोड़ का टोटल आउटगो है गवर्नमेंट का सैलरीज में, गवर्नमेंट सैलरीज में, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसका 12.5% ईपीएफ गिन लीजिए, उसका 25%, तो वो डिवाइड बाई 12, तो उतना आता है 1 से 5 तारीख के बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपलसरी। ओके, तो ये दो रीजन की वजह से 1 से 5 तारीख के बीच में बाजार में बुलिशनेस थोड़ा बहुत तो रहता है, फ्रंट लाइन में तो रहता ही है। ओके, बिकॉज ईटीएफ में ज्यादातर ईपीएफओ दे इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स, ओके, तो ईटीएफ्स में वो पैसा जाता है, तो इसलिए वो फ्रंट लाइन स्टॉक्स चलते हैं। तो दिस इज बेसिक मोटा मोटा यही कैलकुलेशन है कि 1 से 5 में आपको फ्रंट लाइन में ज्यादा बुलिशनेस दिखेगी। सर वन मोर क्वेश्चन टू शरद सर। शरद भाई, सर अभी जैसे रिलायंस ने अनाउंस किया डीमर्जर और दे फाइनेंशियल आर्म एनबीएफसी में वो जाएंगे, सर आपको क्या लगता है सर बाकी एनबीएफसी कंपनी जो इतने हाई वैल्यूएशन में अभी चल रहे हैं उन पे कैसा इम्पैक्ट रहना चाहिए सर इसका? बिकॉज वेन एवर रिलायंस एंटर्स एनी मार्केट, वो कंपटीशन को एकदम किल कर देता है, मतलब कंपनीज को एकदम किल कर देता है। तो सर आपका व्यू सर? ये तो जूना बात है, ये अनाउंसमेंट तो जूना बात है। ये डीमर्जर का तो अनाउंसमेंट कल ही आया ना सर उनका। क्या है? सर मैं बताऊं सर, सुमित जी, एक्चुअली दिस इज एन ओवर क्राउडेड स्पेस राइट नाउ। बजाज फिंसा और बजाज फाइनेंस जब आए थे, डीमर्जर हुआ था उनका मेन बजाज ग्रुप में से, तब उनके पास था बीएनपीएल मॉडल। ओके, बीएनपीएल माने बाय नाउ पे लेटर। यस तो सर। जैसे उनका आउटलेट था, कोई भी आप वाइट गुड्स के पास जाते थे या परचेज करते थे, तो दे वर गोइंग इन फॉर दिस बाय नाउ पे लेटर। तो इनको कुछ ऐसी चीज लानी पड़ेगी कि जिससे उनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट आए और वो बेच सके अपना प्रोडक्ट। जेनेरिकली इफ दे कम विद द यूजुअल प्रोडक्ट्स व्हिच एवरीबॉडी इज सेलिंग, तो उनके पास इतना फोकस नहीं होगा कि जिस तरह से उनके मार्केट शेयर बढ़े। they need to come up with some unique products, unique ideas, तो ही ये इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है इन द शॉर्ट टर्म। सर तो इसमें जो शरद सर का, मैंने शरद सर को इसके लिए पूछा ये क्वेश्चन क्योंकि शरद सर की जो थियरी है मीन रिवीजन की, तो सर जो ये कंपनीज जो अभी चल रही है फाइनेंस, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस जो इतने हाई पी पे चल रहा है, तो सर ये मीन रिवीजन इस पे भी लागू होगा, तो इट शुड करेक्ट वेरी बैडली फ्रॉम हियर ना सर? यस, इट विल। यस, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वही पूछना था। जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, एनबीएफसीज विल ऑलवेज टेक ए हिट। ओके ओके, तो वहां पर इश्यू रहेगा। ओके, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा रहेगा, कॉस्ट ऑफ, बिकॉज देयर इंटरेस्ट रेट इज नॉट मार्क टू मार्केट। ओके, तो आप कोई भी बैंक लोगे तो उनका जो कैश क्रेडिट ऑडिट का पोर्टफोलियो होता है वो मार्क टू मार्केट होता है। मार्क टू मार्केट होता है सर। हाँ, तो वो जैसे ही रेपो रेट बढ़ा तो उनके साथ रेपो के साथ ही लिंकअप होता है रेट। तो यहाँ पर बजाज में अगर उन्होंने ओडी दी है तो ठीक है, बट अगर उन्होंने बिजनेस लोन या पर्सनल लोन दिया है तो दैट इज नॉट मार्क टू मार्केट। उनका जो जिस टाइम पर, हाँ, जिस टाइम पर दिया था वही रेट लागू होगा। और सर उनका तो अगर आप क्लोजली बैलेंस शीट को देखें तो उनका तो मैच्योरिटी मिसमैच भी काफी होता है, बिकॉज दे बोरो फॉर द शॉर्ट टर्म एंड दे लेंड समटाइम्स विद द लॉन्ग टर्म, तो वो भी मिसमैच काफी रहता है सर उनके पोर्टफोलियो। नहीं, वो आप इतना इंटरनली आप मत देखो, बट मैं तो बोल रहा हूँ ओवरऑल इट विल करेक्ट। ओके, या गॉट इट। सर एनी लेवल्स फॉर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इफ अगर कुछ?
नहीं सर, नहीं, नो ओके लेवल्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Hello, am I audible? Hello, हाँ Sharad अर्नव जी, sir. Hello, everyone. आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी पेपर के ऊपर उसका पूछना मत सर ज्यादा, अर्नव जी। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने जो है, शरद जी ने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया था काम करने के लिए, उसी पे मैंने काम किया और मैं शरद जी के साथ शेयर करता हूँ आपके साथ। उस पे मुझे कमेंट चाहिए कि आप लोगों का क्या कमेंट है, तो उससे मुझे और भी एक लाइट मिलेगी नया काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो शरद जी ने मीन रिवर्जन की बात की थी और शरद जी का कहना था कि जो 1000 डेज का मूविंग एवरेज है नॉर्मली, उसको हम लोग मीन रिवर्जन मान के चलते हैं। तो मैंने, हाँ जी सर बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं बोलिए। तो मैंने जो है दो तरह की, एक तो मूविंग एवरेज जो आपको बाजार में हर जगह से मिलती हैं, आप इंडिकेटर्स बना लेते हैं, कुछ करते हैं। मैंने एक दूसरी मूविंग एवरेज बनाई जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कोफिशिएंट वॉल्यूम। वो क्या काम करता है कि, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपना सवाल समझा सकूं या आपके कमेंट को, मतलब आपको अपनी बात समझा सकूं। तो मैंने 300 दिन, 600 दिन, 600 डेज एंड 1000 डेज का क्यूमुलेटिव कोफिशिएंट वॉल्यूम का एवरेज बनाया। फिर उसको 2008 से पहले देखने लगा, बट मैं 2016 से बताता हूँ कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, निफ्टी में बाकी सब स्टॉक्स हो गए, तो मैंने एक पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से पाया दोनों में, जिसके ऊपर मैं कमेंट चाह रहा हूँ आप लोगों का कि जब एक छोटा करेक्शन होता है, छोटा मतलब नॉर्मल करेक्शन, थोड़ा बाजार गिरा, बैंकिंग सेक्टर भी गिरा, तो वो 300 दिन के वॉल्यूम, कोफिशिएंट का मतलब बहुत डीप होता है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। तो 300 दिन के कोफिशिएंट वॉल्यूम पे बाजार अटकता है। बड़ा करेक्शन होता है 600 दिन पे अटकता है। अब मैंने शरद जी के कमेंट को मानते हुए उसको पीछे से बैक टेस्ट किया, तो मैंने ये पाया कि हमेशा बैंक निफ्टी को बहुत जोर से मारा जाता है मीन रिवर्जन के लिए, और निफ्टी उतनी तेजी से नहीं गिरता है। और ये हिस्ट्री है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बोल रहा है। तो अब जो है 1000 दिन की मूविंग एवरेज और बैंक निफ्टी का वॉल्यूम, वो दोनों बराबर हो जाता है। उन दोनों का बराबर होने का मतलब क्या है हिस्ट्री में, कि मतलब ये है कि जितना माल खरीदा गया बैंक का, वो पूरा पटक दिया जाता है और वो पूरा बाजार के मीन रिवर्जन के मॉडल पे आ जाता है। पर ऐसा निफ्टी में नहीं होता है। आज भी निफ्टी का 1000 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जिसको मीन रिवर्जन मान के चलें, वो आके 600 दिन के वॉल्यूम पे अटक जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे किसी भी, जो भी नॉलेजेबल हैं, शरद जी हैं यहाँ पे, कि ऐसा क्यों है कि बैंकिंग को ही पटका जाता है पूरे बाजार को मीन रिवर्जन पे लाने के लिए, और दोनों का मीन रिवर्जन अलग अलग क्यों है? शरद सर, आइडिया नहीं है भाई, हम इतना टेक्निकल आदमी नहीं है। अर्नव जी, एक रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टॉक्स इन निफ्टी इज मच हायर देन द बैंक निफ्टी, तो ये एक रीजन हो सकता है। मैं जैसे एक चीज मैं कल नहीं किसी को भाई साहब, आप एक बात बोल रहे हो, बोलिए। every year 2-3 stocks are removed from Nifty and 2-3 are added. सर मैंने इसलिए कोफिशिएंट शब्द का इस्तेमाल किया था, उन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बाजार का एक वॉल्यूम है जो किसी के आने और जाने पे वॉल्यूम, जैसे एक बाल्टी में पानी अगर 200 लीटर भरता है, उसमें से अगर एक मग पानी आप निकाल दें और दूसरा डाल दें, तो बाल्टी के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो what you trying to say? अभिषेक, आई हैव मेंशन माय
statement very clearly. I need a comment on that. Ki why the banks are forced up to a level which we called a correction or a crash. Why not the Nifty stocks? I want to understand so that I can get another light No, to there's a research simple it answer further. to that. Ki the majority weightage, if you see, apart from Reliance is about 14% weightage. And then you look at next heavyweights, there's HFC Twins. And then comes ICICI. So it's very obvious ki Abhishek, they have to move those, right? no, Abhishek, this is not the right answer because Okay. mean reversion is applicable to everyone. एक मैं सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसा है कि FII का बहुत ज्यादा स्टेक सिर्फ बैंक निफ्टी में होता है और मीन रिवर्जन करने के ज्यादा व्हाट डू यू कॉल इट इन अर्नव जी FIIs don't trade बैंक निफ्टी. अब देख लेना डेटा. आई गॉट इट, दैट वाज माय क्वेश्चन, आई वाज नॉट श्योर. FIIs don't trade बैंक निफ्टी. वो गलत नहीं करते हैं वहाँ पर ट्रेडिंग. तो हाँ वही है, तो बैंक निफ्टी को ही ज्यादा क्यों पटका जाता है? निफ्टी में वेटेज 40% है उसका. So this thing about your 1000 moving average जो आपने बताया, that thing I agree with कि आना चाहिए वापस. नहीं, and for me it was for stocks. ये निफ्टी फालतू का आइटम है यार, बकवास है. शरद भाई, मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूंगा. निफ्टी लोग बात करते हैं बट निफ्टी बनता तो इन्हीं से ही है तो इन्हीं 50 व्हाट डू यू कॉल इट इन हिंदी संग्रह का जो 50 नहीं है, 5 है. Abhishek, I'm talking about cumulative, therefore I use the word cumulative. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, ये जो 1000 days का कंसेप्ट है ना, इट इज एप्लीकेबल टू स्टॉक्स. ये निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे को तो सख्त नफरत है. उसे क्या देना देना निफ्टी और बैंक निफ्टी से? आप भी क्यों आर्ग्यू व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट, और टॉक अबाउट स्टॉक्स ना. योर ठीक है सर, मैं क्या वेल्थ विल बी क्रिएटेड ओनली इन स्टॉक्स. आप कितना भी निफ्टी बैंक निफ्टी खेल लो, आपका कुछ नहीं बनेगा लाइफ. सर, मैं with due respect, I am not interested in wealth and anything. I am more interested in research. मैं आपके लिए कुछ स्टॉक पे रिसर्च करके वापस आऊंगा, तो हो सकता है कि आप उस पर कुछ लाइट डाल सकें. ठीक है सर. हाँ विकास जी बोलिए. सर मेरा स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. एक मेरे को सर जॉनसन हिटाची पे, और एक मेरे को सर हीरो मोटोकॉर्प पे क्वेश्चन था. जैसे हीरो मोटोकॉर्प में तो पिछले 9 साल से कहीं गया ही नहीं शेयर प्राइस, तो क्या आने वाले 3-4 साल का व्यू जानना था सर हीरो मोटोकॉर्प में. और जॉनसन हिटाची पर्सनली मेरे को लाइक इनका प्रोडक्ट या मेरे को कंपनी काफी अच्छी लगती है, बट डाउन ट्रेंड में है अभी शेयर, तो इसके ऊपर सर व्यू जानना था. जॉनसन हिटाची और हीरो मोटोकॉर्प. जॉनसन हिटाची नीचे जाएगा और हीरो होंडा अगला 15 साल तक इधर ही रहेगा. ओके सर, ओके, थैंक यू. यस विश्वा. हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ. एक्चुअली मैं सर एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता हूँ. नहीं, बात मत करना. ओके. छोटा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहो तो सुन लो. हाँ बोल लो, चलो अभी आए हो तो बोलो. हाँ, तो एक्चुअली देखो, मैं जो है ना पंचक को फॉलो करता हूँ. पंचक आप सब लोग जानते होंगे. एवरी मंथ में एक 5 दिन पड़ता है जब भी पंचक लगता है. ठीक है. तो पंचक के दिन में जो हाईज और जो लोज बनते हैं इस 5 दिनों में, वहां पे मैं ये देखता हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ ये, कि बड़े रिवर्सल्स होते हैं मार्केट के अंदर. तो मैं आपको एक पॉइंट, रिसेंट पॉइंट ऐड कर देता हूँ. 24 फरवरी को सबको दिन याद होगा. ठीक है. उस दिन मार्केट में एक रिवर्सल हुआ था और मार्केट कहाँ गया वो सबको पता है. अभी रिसेंटली उसके बाद में मार्च में भी एक रिवर्सल आया. वो डेट था, उसमें भी पंचक ही था, और मार्च का डेट था 19 से 23 के बीच में. तो देखोगे कि 21 तारीख को ही मार्केट गिर गया था.
ठीक है, और वहां से करीब करीब निफ्टी 17,700 से 1,000 पॉइंट का सर जी करेक्शन अभी है। अप्रैल में बोलो ना, अप्रैल में कब है पंचक? तो अप्रैल की जो है वो है 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में, ये 5 दिन का है। आप लोग ये डेट नोट कर लो, 15 और 19 के बीच में जो भी हाईज और लोज लगेंगे निफ्टी के, ठीक है। और आप ऐसा बोल रहे हो कि 15 तारीख तक निफ्टी ऊपर ही जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, 15 तारीख तक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। उसके बाद में वो तो 15 20-22 से हजार हो 19 जाएगा, के बीच में मार्केट में रिवर्सल होगा। यानी 20-22 हजार हो जाएगा निफ्टी। नहीं, चलो सर, जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाएगा, मतलब रिवर्सल मीन्स अगर 17,700 पे समझो अभी गया निफ्टी और 17,700 से एक रिवर्सल आया और वहां से तो फिर वापस से एक नया लो बनेगा फिर से निफ्टी में। मैं ऐसा समझता हूँ और ऐसा हो रहा है, कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी विश्वा, लेट्स सी। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। खतरनाक फंडा है भाई पंचक में तो। ठीक है भाई, उनका नॉलेज है, ठीक है। एक मिनट, फैक्ट फाइंडर है यहाँ पर। यस फैक्ट फाइंडर, गुड इवनिंग। श्रीकांत जी आपको लेता हूँ मैं, एक मिनट हाथ नीचे कर दीजिए, मैं लेता हूँ आपको श्रीकांत जी। या फैक्ट फाइंडर। Hello, can you hear या me? यू आर ऑडिबल। Yeah. Hi, Samad. Hi, Sharad ji. Hi, हाय। everyone. So, I don't know, interesting thing. I don't know what much to say except the latest data that came out of the US. Speak a bit loudly. Yeah, just 1 minute. Yes. Give me 1 second, I'll come back. हाँ बस। डॉक्टर या श्रीकांत जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम ये एंड आई एम न्यू इन शेयर मार्केट, पर अच्छा लगा शरद जी और समर जी आपका सुन के, बहुत कुछ सीखने को मिला। द बेस्ट पार्ट मुझे सीखने को मिला है आज के सेशन में, दैट इज क्वालिटी। और जो मैं ये यूट्यूब पे देखता था लोपी ये वो सब दिमाग से हट गया अभी। सो थैंक यू फॉर दैट सर। जस्ट वांट योर ओपिनियन ऑन ओल्टास एंड IRB। Voltas is a dud. And which one another one? IRB, Indian Road and Builders. It's good. But it won't do well when the interest rates are rising. IRB yes, IRB Infra. यस यस सर। वोल्टास का नहीं सुनाई दिया। 400 के आसपास लेना सर, 300-400 के आसपास इन्वेस्टमेंट करना है तो। ओके सर, ओके, थैंक यू। Yeah, fact finder, are you comfortable? Yeah. Hi. Sorry. So, what was I saying? Basically, if you look at the latest data that came out of the US banks, it looks like the Fed balance sheet is once again shrinking. I had put out a Twitter thread recently saying, one should not look at that number in the first place. People got excited thinking that the Fed balance sheet is expanding and so there is QE. That actually is not QE because it's a swap between the Fed and the bank directly. So there's no money creation in the market. Money creation or credit creation is what drives inflation. This is not going to increase inflation. I'm actually quite worried about what's happening to the US commercial real estate sector. Meanwhile, I think there's going to be obviously one more, hike by the Fed. I think the big question on most investors' minds is whether we go in for a rate cut in the next 3 months or in the next 9 to 10 months. If it happens in the next, beyond FY23, then people will be a little more happier. If the Fed decides to cut rates in the next 3 months after hiking rates, then people will be worried that something really bad is going on. So that's something to watch about. Nonetheless, whatever be the result,
one thing is very certain: commercial real estate in the US will, have a problem. The banks across the board will keep reducing their lending. In fact, they will shrink balance sheets, and I don't think that's really good for credit globally. Uh, Meanwhile, the other big incident is obviously Japan. If Japan decides to hike up rates with the new governor, then that could be something very, very important to watch about, because Japan accounts for almost or has provided almost $3.8 trillion to the world economy, at least in terms of buying of securities globally. That happened over the last 10-12 years. If that reverses, that can be a very significant event. As far as India is concerned, I think I'm quite negative on the auto sector, especially the four wheelers. Not the CVs. I'm pretty positive on the CVs, but the four wheelers, I think, will see downgrades. People are definitely feeling the pinch of inflation in India. What the government did in the recent finance bill was a stupid thing, because let me explain to you. 1 rupee that goes from a person into a mutual fund, it finally goes into an NBFC or a corporate. So effectively, 100 rupees is going into the system, right, for profitable business. If 1 rupee goes from a person into a bank account, only 50 rupees is actually lent out to a profitable business. So you are actually reducing the availability of credit by pushing people to divert that money away from mutual funds to, bank deposits. So I think that is very negative for the economy, especially when you want more credit uh, to the system. Somebody asked about Bajaj Finance. In my view, Bajaj Finance will eventually now have to become a bank, because Bajaj Finance can't depend on banking sector for its credit, for its loans. I mean, even insurance has got killed by the government of India. Now mutual funds, who's left to fund the NBFCs? Only banks. If you're going to fund yourself through banks, you might as well become a bank. Now, if the question is, if Bajaj Finance becomes a bank, what happens to the multiple? Just want to share these thoughts. Fact finder, there's one more thing about the kind of debentures these guys are letting out. So I just read this one. So Spandana Spurti Financial is giving out 2025 maturity bonds for 12.5%, and then your Muthoot Finance is 11%. So the cost of funding is going up quite significantly for these NBFCs. So if they have to even break even at that kind of interest rate what they are paying, so minimum they have to lend at 18% is what I'm thinking. But Abhishek, just to interrupt, Muthoot Finance is into gold, primarily gold finance business. Correct. So I don't think so there is any issue in that business. As and when there is an NPA, gold gets liquidated easily. So let me just add one thing to what you're saying. I won't take too long. I'll just simply say that when a person takes a loan from Muthoot or a Manappuram, they don't really look at the cost of funding, because they think is, okay, for 30 days I have to pay 100 rupees extra. They don't think and calculate, okay, what is the rate of interest. So I would ignore the cost of funding over there. But of course, if it is a bigger ticket, then most of those customers will not go to Muthoot or Manappuram, which is one of the reasons, if you notice, the total gold holding by Manappuram and Muthoot hasn't been growing at all. So their loans also will be limited to the extent of gold price. The other interesting thing I want to also share is that if that 1 rupee were to go directly from the mutual fund, from the person to a mutual fund to an NBFC, the bank is not there.
So there's no net interest margin. But the same money, if it was going from a person to a bank deposit to a corporate, the bank is earning the net interest margin. So actually, what the government is doing is trying to increase the cost of credit to corporate India or cost of credit to personal loans. Why would they do that? Why would you increase, the cost of credit? You are trying to in the SEBI on one side wants to remove the broker, reduce brokerage commissions. Sure, the government is actually trying to increase the intermediary, which in this case is the bank. Stupidity. No, but that's because they cannot increase the corporate tax. No, actually, the government 35% of the money that goes to a bank gets invested in GSECs. Charaji, what do you think about the market? Horrible. I have a question to Sharadji and all the other panelists and audience members. Yeah. Which sector do you think is going to go up the furthest? I mean, I'm a bit bullish on banks right now, but what is your opinion? Industries. Sorry? Industrials. Ah, Industrials. okay. Rahulji, once interest rate goes out, Banks are a shit show. Rubbish. How can you invest in banks? I mean, so far it's given me good returns, but yeah, I see your point going forward. No, but Sharaji, why do you say? I mean, in terms of asset quality, banks are fine. Why do you say banks are a shit show? No, valuation wise, every which way. I think valuations have come off, right? Come off, but they should be much lower than this. And also another thing, do you really trust the balance sheets? I don't believe that. I generally trust. You know why, Sharaji? Because the corporate sector has not seen any real credit growth in almost 6 to 7 years. I mean, almost 6 to 7 years, you have not seen corporate sector actually take proper borrowing. They have reduced and reduced and reduced and reduced because there is nobody's investing in capex, right? Last 4 years, 5 years, if you look at the last 5 year capex growth, it is only 4% or 5% CAGR, which is lesser than your inflation rate. Nobody's investing in capex. To 1 year they won't invest, next year they will invest, next year they won't invest, the next year they will invest. So if you look at long term growth, it's only 4-5%. Inflation only is more than that. Anyway, in my entire career, I have seen industrial growing 400 times, 500 times, 1,000 times. Banking stocks I have not seen going up so much. Anyway, everybody has their own choice. Yeah, who's next? V. yeah, wealth. Yes, नमस्कार समर सर. नमस्कार sir. बोलिए. Sir, आपसे भी क्वेश्चन था, but I just want to ask something from Fact Finder because he says something about USA and Fact Finder. You said that the money Fed gave is not actually value addition; they are just to improve like in the balance sheets. So we can assume that in the further coming years, there are something in the US like a whole West, Europe as well as America, the developed economies mostly are heading for something rare things, and the recent like we see real estate booms in Canada and US
mostly developed cities, like they are falling near about 35 to 42% in within 3 months, I think. So can you share something on that? Like if the value addition is not done by the money, it's done only for balance sheet improvements. So there will be no like opportunities and expenses in the hands of the people, right? एक बात बताओ, you want to invest in real estate in US, Canada or what? Nahin, no, sir. I just asked because most of the investments in the banks are and the loans the banks gave have a exposure to the real estate and all their things. And if the देखो, value of that comes down, saying you talk about India ना यार, US is a different animal only. It's huge. We can't imagine how big US is. सर जी वहां पर तो रिवर्स मॉर्गेज भी होता है. We don't have a product over that in India. अभी तू भी यार कुछ नया बोलता है, मेरे को नहीं मालूम. मेरे को इंडिया का भी नहीं मालूम है, तो तुम अमेरिका का तक बोलता है यार. तुम मेरे को एक बात बताओ, और क्या नाम है भाई तेरा? वेल्थ. सर चिरंजीव बंसल है मेरा नाम. अरे यार यहाँ पे बोलना क्या लेने का बेचने का. अरे सर आप जैसे दिग्गत बैठे हो, हम कैसे बोले क्या लेने का क्या बेचने का? हम तो सर आपसे एक्सपीरियंस लेने आते हैं. नहीं नहीं, आप बोलो. कोई वो छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है. आप अरे बोलो नहीं ना. सर. अरे सर मैं जब भी आता हूँ मैं सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की बात पूछने ही आता हूँ. तो आज भी मैंने आपसे यही पूछना है सर. आपका जैसे इतना लंबा स्पेन रहा है सर मार्केट में, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपके स्पेन ने सर ऐसा मार्केट आपने कभी देखा है जिसमें मूवमेंट ही ना हो रही हो? मतलब ओवरऑल जो इंडेक्सेस में, मैं पर्टिकुलर लेवल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ. जैसे साइकोलॉजी बना हुआ है सोसाइटी का कि कहीं पे जा ही नहीं रहा है ऐसा, मतलब लंबा करेक्शन आपने अपने लाइफ स्पैन में पहले देखा हो हाँ, सोसाइटी वो में, टाइम किस देगा, तरीके की साइकोलॉजी रही हो? वो टाइम देगा कुछ. अच्छा सर, तो उसमें कौन सा सर टाइम पीरियड रहा होगा आपके अकॉर्डिंग? उसके बाद सर मार्केट में किस तरीके का सर मूवमेंट देखा है आपने उस करेक्शन के खत्म होने के बाद, चाहे नीचे को चाहे ऊपर को सर? क्या क्या पूछा? शायद सर मैंने ये पूछा है कि जैसे आपने देखा कि इतना जो साइकोलॉजी है, जो पूरा हमारी सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना इंक्रीज होता है, जैसे कॉमन मैन का कह रहा हूँ मैं, ट्रेडर्स का चलो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका नहीं होता, बट जिनको थोड़ा सा कम साल हो जाते हैं, जैसे 1.5-2 साल होते हैं, जैसे कोविड के टाइम पर आए, उन लोगों की बात कर रहा हूँ. तो उसके बाद सब जब ये लेवल्स मार्केट कोई भी ब्रेक करता है, जब इस तरीके का साइकोलॉजिकल सर एक इम्पैक्ट आता है मार्केट में, उसके बाद सर आपने किस तरीके का मूवमेंट देखा है कि मतलब कितने परसेंटेज तक का मूवमेंट देखा है सर? 8%, 10%, एक साल में 15% का मूवमेंट उस? अरे आई एम नॉट एन इंडाइस प्लेयर यार, आई एम अ स्टॉक प्लेयर. आप समझो मेरी बात को. जी सर. मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी से कोई लगाव नहीं है, खेलता नहीं हूँ, नहीं खेलना है. स्टॉक का पूछो, मैं बताऊंगा आपको. स्टॉक में सर आगे आने वाले समय में सेक्टर में, और सेक्टर में अगर आप एक दो स्टॉक्स अच्छे कंपनीज बता सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था मुझे याद है कि आप कंपनीज की सिर्फ मैनेजमेंट देखते हो, अगर मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट है तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो. तो सर अभी क्या लग मैनेजमेंट रहा है और कौन सी बिजनेस. इंडस्ट्री में? और मैनेजमेंट और बिजनेस. जी सर. तो अभी सर क्या लगता है कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडस्ट्री जा सकता है? और सर क्या कारण क्या लगता है, उसका कारण क्या है जाने का ऊपर? अरे इतनी बार तो बोल दिया मैंने, 5-10 बार बोल दिया. इंडस्ट्रियल्स लो. ओके सर, इंडस्ट्रीज. आप ये वापस रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो ये आई थिंक 1001st टाइम ये इन्होंने वापस बोला अच्छा इंडस्ट्रियल्स सर. इंडस्ट्रियल्स अच्छा अच्छा. इंडस्ट्रियल. चलो फिर ठीक भी है बोल सर. देता हूँ, एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस, ओके सर. ओके सर. ऐसा 50 स्टॉक है. एक्चुअली तुमको शेयर बाजार में नहीं आने गए, ये सब स्टॉक लेके चले जाओ, अपने आप करोड़ों रुपया आएगा.
ये फालतू का यूएस कनाडा बेमेडा, अरे रहना शांति से। तेरे को 1 करोड़ का शेयर ले लो, चले जाओ, और 10 साल में 20 करोड़ हो जाएगा। तुम बेचेगा नहीं, और 50 करोड़ हो जाएगा। तुम बेचेगा नहीं, 200 करोड़ हो जाएगा। ऐसा होता है वेल्थ। ये बैंकिंग फालतू का चीज है यार। चलिए, थैंक यू। Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. रोहित जी बोलिए। Hi Sharad sir, hi Samarth, and hi Factminder. So I know we are talking about US, but I'm a passive investor, and I just wanted to know, like from a 10-year point of view, uh, where like since I only do passive investing, Nifty 50 or S&P 500, like which one has a chance of giving better returns? None of the above. Okay. Only industries. Okay, all right. And do you have any view about the USD INR? You as well as Factfinder? In 2 years, it will be 90 rupees. Okay. Thank you. बोलो या और कोई? नीतीश जी, नीतीश झा। या परेश भाई बोलो। નમસ્તે નમસ્તે શરદભાઈ. नमस्ते सर, Hello. बोलिए बोलिए सर। શરદભાઈ, હું તમને should I call you Kaka because I am also 62 years old. Hello. हाँ, काका को चलो। ये तुमने पूछी So I've अपने been लिए। following, sir, I've been following you, and I have some reasonable understanding of the markets. And markets nahi, but appreciate good companies who have technology, who are clean. I have been in touch with Samarth Bhai. I have gone to your timeline. I have shared a list of stocks with Samarth Bhai. And so all I'm trying to say is that I appreciate it. And is there a way, so obviously Samarth Bhai responds immediately. So at 62, I want to, leave some investments, good investments, which I am comfortable that will last for say 15, 20 years, more or less reasonable appreciation. And would like your whenever I enjoy these spaces, but keep on adding to that list verbally. I mean, you don't have to. I'm sure there's all this other stuff about SEBI and whatever the stuff. But whatever you like, once in a while, please do share. I have compiled quite a good list. I think I have about 12 stocks that you like. Yeah. So that's all I wanted to say. Please keep that on so that you can share whatever you like. I'm sure it cannot be considered a recommendation. I get a fuck. But please keep sharing those good ideas. Where are you from? I'm from Ahmedabad. My number is, WhatsApp number is there. I know. Yes, sir. Call me up tomorrow. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you. थैंक यू परेश भाई। Yeah. एक्सप्लोरर, टोरिड एक्सप्लोरर। हिमाद्री जी बोलिए। नमस्ते शरद भाई, सर समर्थ भाई, अभिषेक। मेरे अभी सर ने डॉलर के मतलब फॉरेक्स के बारे में बताया, तो मुझे पहले मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो है कि अभी रूपी मार्केट यूएसडी आईएनआर में जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो भी कुछ करेंसी शायद लेके आ रहे हैं, तो
उसको लेके अगर काफी सारा हलचल चल रहा है, तो इसमें यूएसडी आईएनआर में कुछ इफेक्ट होगा क्या? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा सर बार बार बोलते हैं कि हाइब्रिड, लाइक ये जो इंडेक्सेस है मोस्टली दे आर काइंड ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्ट, तो इसको जब वेटेजेस होता है तो मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, उसका एक स्पॉट प्राइस है, एक फ्यूचर प्राइस है और एक डेरिवेटिव साइड है, तो ये वेटेजेस जब वो कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कैसे रहता है? मतलब सिर्फ स्पॉट बेस्ड है कि सारे में ट्रेडिंग लिया जाता है? स्पॉट बेसिस पे होता है। ओके सर, ओनली स्पॉट्स, मतलब उसमें फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स का कोई ओके। या गुड इवनिंग सर। या सर एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू सिप, एंड सम टाइम मैं टॉप अप करता हूँ 20,000 का, जिससे मार्केट डाउन होता है। तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और इन और शेयर मार्केट, लाइक डेट शेयर से ट्रेडिंग करना, कौन सा बेटर है सर आज के टाइम पे? हेलो हेलो। या यू आर वर्किंग एज व्हाट? एज ए इंजीनियर सर, इंजीनियर इन रिफाइनरी। What is the better route for you? सर Mutual fund is a better route for you. ओके सर, Yeah. फॉर लॉन्ग टर्म। Yeah. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is that I have invested some 1 to 2 lakh in the planning counter DMart. What about your view? So what Which did you company? say? Which company? DMart, sir. DMart. Yes. DMart, I will not open my mouth. Okay, sir. Thank you, sir. As it is owned by my friend. Yes, sir. So, any other companies in the FMCG come back, sir? No. No FMCG? FMCG I don't like. But DMart is the retail segment, right, sir? I won't speak about it, DMart. सर डीमार्ट के अलावा बात कीजिए सर। तो डीमार्ट छोड़ के बाकी सर कुछ और एफएमसीजी कंपनी और समथिंग राइट है सर? सर वो रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो कई कंपनी की बात हुई है सर मोहपात्र जी। हाँ जी। तो आप एक बार वापस रिकॉर्डिंग सुन लेना सर, इट विल हेल्प यू आउट। नहीं अभी मत लो यार, बहुत महंगा है। अभी भी महंगा है सर 32 में। ओके चलिए। HSS। थैंक्स सर। सर जस्ट वन पूछना था, ये जोडियाक क्लोथिंग और अरविंद फैशन लेने चाहिए कि रुकना चाहिए? कितना साल रुके और मतलब कितना टाइम पीरियड को? जब तक लिस्टेड है तब तक रुको, और क्या। ये सब इन्वेस्टमेंट होता है क्या? ये सब स्टोरीज है। Okay. See, first of all, if you are an investor, you have to understand what is a stock and what is a stock. These are all stocks. स्टोरी है, ऑर्डर मिला, ये हुआ, स्टॉक्स ये सब हवा का झोंका है, चला जाएगा। You have to be in real stocks, blue-blooded stocks. That's it. Understand. Thank you. Thank you. और बताइए। I am also bullish on industrials only. I am in my portfolio industrials only. अरविंद और जोडियक में क्यों पढ़ते हो सर? नहीं वो लिया ही नहीं है, लेकिन जोडियाक में इसलिए क्योंकि प्रमोटर ने 14% स्टेक लिया है 169 पे, एंड जोडियाक में जाने दो ना सर, जाने दो सर। अरे भाई 5,000 कंपनी है,
वो किसी में ना किसी में वो कॉर्पोरेट एक्शन होता ही है, तो हाँ, सब ले लोगे क्या? वो पाँच देखिए 5 लाख का शेयर लेंगे और 10 लाख का शेयर बेचेंगे नेक्स्ट मंथ में। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ भाई, आपका जो भी नाम है, शेयर बाजार में है ना, ये चंचलता नहीं चाहिए, चंचलता। बराबर। वो देखा तो उसमें मन हुआ, वो देखा उसमें मन हुआ, नहीं। शेयर बाजार मतलब डटे रहो, Yes, sir. खड़े I am रहो। 100%, sir. I agree. I'm in industrial since 2014, 13. नहीं तो अभी आप बोले ये भी देखा वो भी देखा। नहीं, वो देखा अरे है, सिर्फ लिया नहीं है। अरे सारा कंसंट्रेशन। मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सर, कि आपने रास्ते में अच्छा लेडी देखा तो उसके भी शादी करना चाहोगे, फिर नहीं आगे नहीं जाओगे और एक अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं होता ना सर, एक ही वाइफ होती है। नहीं। यस, तो अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूँ ऐसा स्टॉक अब 5 स्टॉक होना चाहिए अपना लाइफ में, और कुछ नहीं होना चाहिए। आई एम 100%, माय 100% पोर्टफोलियो इज इंडस्ट्रियल ओनली। सब छोटा बड़ा। बेच देना वो थोड़ा बहुत हमको भी, हम सर बेच दें। पोर्टफोलियो सर हाँ, लेकिन सब इंडस्ट्रियल है, इतना ही पक्का है बस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ सुमित जी बोलिए। सुमित महेश्वरी। हेलो सर। बोलिए। यस सर बोलिए, गुड इवनिंग। सर मुझे गोल्ड या सिल्वर में किस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ये आपने अभी तो बंद हो गया, और सोमवार को 9 बजे ले लेना। नहीं नहीं, किस लेवल पे, मतलब अभी डाउन साइड पे और आना उम्मीद है या ऊपर जाएगा? सर वो उम्मीद कोई लेवल हम नहीं बताएंगे। नहीं, उम्मीद है नीचे जाने की। वेट कर लो, 3-4 साल वेट कर लो, बाद में ले लेना घटे तभी। सुमित जी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो गोल्ड और सिल्वर का व्यू सर ने बताया था, यू कैन हियर इट अगेन। अरे ले लो ना सर, कितना अभी लेना है हम आपको? क्या नीचे में लेने का है, ऊपर में लेने का है, नीचे में? नहीं उनको फ्यूचर्स में लेना है सर, लेवल्स पूछ रहे नहीं हैं अभी सर, क्या। नहीं फ्यूचर चाहिए सर, मुझे उस पे कैश में ही लेना है, मतलब फिजिकली लेना है। और मैंने शुरू में लास्ट लेट हाँ तो ज्वाइन करा तो इसलिए फिजिकली ले पता लो नहीं था। सुमित जी, आपको लेना है तो ले लीजिए। 2-3 किलो तो नहीं लेना है ना आपको? नहीं सर, नहीं सर। हाँ बस तो फिर ले लो ना यार, देर इज नो। थैंक यू सर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, थैंक यू सर। हाँ, गोल्ड इज एन एसेट, एवरीथिंग एल्स इज ए लायबिलिटी, याद रखना हमेशा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ विशाल जी बोलिए। Hello, Namaskar sir ji. Sir, what is your view on Aspinwall? हाँ? कौन सा? Aspinwall. ये क्या है? मैंने भी नहीं सुना। Aspinwall एक कंपनी है ना, Aspinwall and Co Limited, नहीं कंज्यूमर नहीं स्टेपल। नहीं भाई नहीं। मैंने तो नहीं सुना सर, सॉरी। बोलिए हेमंत जी। ओके। या हेमंत जी। Good evening, Sharad sir. Good evening, Saman sir. Abhishek, good evening. Sir, one question. My sister works in Deutsche Bank. Okay, they are providing her Deutsche Bank shares. Is it advisable to buy it or to just ignore it, sir? I just mean she was asking me. I thought of asking Sharad sir's opinion about it. No, but at what rate they are giving? I think market rate itself is what she told me. I saw that it was trading around 18 euros. उसमें सर वो मार्केट रेट में कुछ देंगे, प्लस देयर विल बी सम बोनस शेयर्स व्हिच विल बी क्रेडिटेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। Yeah, correct. Something like that. I'm not equipped to advise on this. Okay, okay, sir. But what my brain says, you ought to
avoid this company. It's in deep shit. Yeah, correct, sir. And she was also saying the same thing. From 6 years, they are trying to roll out from the problems, but still they are undergoing some problems. So, since the government, German government itself is involved, so that they want to save that bank. So she was like just a little bit confused. I mean, she was ignoring this from past 2.5 years. And finally now it is at trading at 18 euros, right? So she was asking me whether can I invest on it, or can should I wait? Then I told her, let me concern one of my in Twitter handle, there is Sharad sir. I'll ask him. So just today I got an opportunity to talk to you. I was waiting for Friday, in fact. Avoid. Yeah, thanks a lot, sir. हेमंत जी आप क्या करते हो? What you do? I mean, I work for oil and gas industry, sir. I'm a structural engineer. Okay. ठीक है sir. And she works in Germany or in Mumbai? She works in Bangalore itself, sir. And she frequently travels to Singapore to give some trainings to there. Okay. Yeah. Thanks a lot, sir. Ask her if she can find a better job elsewhere. Yeah. She is looking out, sir. It is a sinking ship. Actually, she's been promoted now as assistant director. I mean, she was looking out for another job when they gave the promotion. So, meantime, she's also looking out for a job right now. Yeah. Yeah, I will just convey this for her, sir. I will make her to hear this recording. Yes, sir. Thank you. Yeah, thanks a lot, sir. Have a good day. Global Indian Vasu. Yeah, so I haven't heard the full space. So, I can bet in Unitech before and made some money in Adani, some time back. So, 95% of my portfolio is in debt, and 5% I play in risky stocks. So, it's been like a binary game for me. So, just wanted to ask your view that can I take some bet in Vodafone Idea as of now? Yeah. You can. Okay, thank you. Learn, do, seek. Yes, good evening, gentlemen. I wanted view on IDFC First Bank, FL India, and Happiest Minds. Sir. Which one? IDFC IDFC Bank, First Bank. Good. फिर दूसरा एक्सेल क्या बोला सर आपने? एक्सेल FL India. FL India. Yes. FL. Yes, FL India and Happiest Minds. वो बकवास है. FL बकवास है. Happiest Mind अच्छा. IDFC Bank. अच्छा. IDFC सर. अच्छा है सर, अच्छा है. Okay. IDFC बड़ा ठीक है. IDFC First Bank is good. Okay. Thank you. Yeah. विशाल बद्रे जी बोलिए सर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे शरद सर से कहना था कि लास्ट 2-3 सेशंस में थोड़ा डाउन दिख रहे थे, मे बी बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया, बट आज थोड़ा अच्छा बोल रहे हैं तो साउंड्स गुड. एंड एक दो एनालिसिस मेरे अगर कंफर्म कर लेते कि इसमें सही हो या गलत, मे बी थोड़ा सा बेटर हो जाता. एंड अगर गलत हो तो सिर्फ गलत हो इतना भी बोल दोगे तो आई विल एनालाइज कि क्या गलत है. बट जैसे LIC अडानी का हुआ था वैसे, मतलब LIC ने शुरू में बेचा एंड बाद में अभी खरीद रहे, तो सेम थोड़ा सा पैटर्न मुझे ये ABB सिमेंट्स एंड कमिस में दिख रहा है.
बट दोज आर स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स एंड इंटरनेशनल कंपनीज, तो थोड़ा सा वो सही प्ले आउट हो सकता है। एंड जो LIC खरीद रहा है उल्टा, दोज आर आरती, दीपक, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, तो दोज आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये स्टोरी अगर प्ले आउट हम प्ले कर सकते हैं, तो हाउ इज इट, लाइक डू यू फाइंड इट करेक्ट और? हेलो, या LIC अपना महल बेच रहा है, तो हमको अपना महल नहीं बेचना है ना। राइट राइट, बट if you think Siemens and ABB will go down, आपके पास है तो बेच डालो, और आपको लग रहा है कि नहीं Siemens मतलब ABB लेना चाहिए तो ले लो। ओके ओके हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है सर। हर्षद जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ हर्षद जी बोलिए। हाँ सर, मेरा अभी ये सेफलर इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल का शेयर है, उसमें इन्वेस्ट करने का थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूँ। क्या ये सही शेयर है अभी फिलहाल? एकदम सही है, आंख बंद करके ले लो। थैंक यू सर। आज सोमवार को ही ले लो। थैंक यू सर। स्टॉक सिप करना, एक साथ मत लेना। अच्छा जी। अरे एक साथ भी करेगा तो क्या हो गया? जस्ट 50 नहीं शेयर नहीं, वांट्स, आई वांट टू बाय अरे 50 शेयर। हेलो हाँ राज भाई बोलो। सर, 50 शेयर्स तक का। हाँ 50 शेयर्स ले लीजिए आप सर, हर्षद भाई। 1 लाख का आएगा 50 शेयर्स। हाँ राज भाई बोलो। हेलो मोहनतेश जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मेरे को टाटा कंज्यूमर के बारे में आपका व्यू पूछना था सर। आई टुक फ्यू लॉन्ग पोजीशंस मैं इन स्टॉक। 350 में लूंगा, 350, 300, 350 में। सो यू मीन इट इज अ डाउन ट्रेंड? मैं 350, 300, 350 में लूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। वायदे में अगर तुम्हारा ऋण है ना, तो तेरा वाट लगने वाला है बहुत जल्दी। हाँ उमेश कोर्टिकर। हाँ सर, HAL और RVNL। अच्छा है। HAL अच्छा है, ऊपर में शॉर्ट करो, नीचे में खरीद लो। 2500, 2900 रेंज है। ओके सर, और RVNL? बढ़िया है, बढ़िया है। ट्रेडिंग मत करना उसमें उमेश भाई। नहीं नहीं सर, इन्वेस्टमेंट बस। हाँ हाँ थैंक यू सर। और समझ भाई, हाँ एक सर। एक एक क्या चुतियापंदी है, अपने बोलते कि ये लो, तो वो लोग खुद का ही निकाल के लेके आते हैं। नहीं क्या पागल लोग हैं। 80% उनके ऑफ दिमाग में जो 80%, नहीं 80% ऑफ पीपल वांट्स टू सेटिस्फाई देयर ईगो कि मैंने जो लिया वो सही लिया कि नहीं लिया। आप बोलोगे तो बोलेंगे कि अभी वो आए थे ना कि उनको सीमेंस में वो LIC बेच रहा है, तो LIC बेच रहा है तो हमको थोड़े बेचना है। वो पीडीलाइट ले रहा है तो पीडीलाइट ले लो। LIC वो HDFC बैंक ले रहा है तो HDFC बैंक ले लो। सब लोग ले आओ, रिलायंस ले आओ। रितेश टाटा कुमार, कंज्यूमर ले आओ, IRCTC लो, IEX लो। IEX। रितेश भाई IEX बोलो। मेरे को लगता है हाँ तेरे सर। को छोड़ के सब लोग को लॉन्ग होगा, तेरे को भी होगा, तू बोलता नहीं होगा। यस बैंक, नेक्स्ट यस बैंक इन द मेकिंग है सर। Hi Akansha, how are you? Hi my child, how are you? I'm good, sir. How are you?
Well, tell me. आकांक्षा जी किसमें अभी ब्लैक लिस्टेड हुए हो आप? सर अभी तो मेरा पैर टूट गया है तो अभी कुछ नहीं, ओह, क्या हुआ? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया सर। ये कोई कंपनी वाले ने नहीं ना किया कुछ? यही लग रहा था सर मुझे, से इनोवा मार के चली गए तो मुझे यही लग अरे रहा था, मैं स्कूटर पर थी तो यही लग रहा कंपनी ने किया कोई। So यहाँ where पर are you बेंगलोर now? में? नहीं, दिल्ली में। So sorry. दिल्ली में कि गुड़गांव में? यही सर, दिल्ली में मार के चले गए, नोएडा में। But are you in Gurgaon or what? नो सर, आई एम इन नोएडा। हाँ, सब बिजनेस चैनल्स उधर ही है। यस सर, फिल्म सिटी सर, एवरीबॉडी इज लाइक पड़ोसी। अच्छा। या ऑल द बिल्डिंग्स आर इन वन लाइन। Sir, I see you have this time you have added bully also to your name. Yeah. One more addition. Yeah. जितना ज्यादा ट्रोल करोगे वो ज्यादा हो जाएगा उसका हेडलाइन। चलो, we'll take somebody else. रितेश कुमार सकलानी, अनम्यूट कीजिए सर, अर्जेंटली, अभी 12 बज गए। जी सर, ये गूगल और अमेजोन के शेयर्स कैसे रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? शरद सर नहीं, उनका पीक हो चुका, अब नहीं। और यूएस में बहुत सारे स्टॉक है जो 5 गुने हो जाएंगे, 10 गुने हो जाएंगे, वो पकड़ो ना। ये पकड़ के क्या मतलब? सर आप बताइए, कोई सजेस्ट कीजिए। अरे हाँ, बोलिए। हेलो हेलो। सर इज हाँ, आस्किंग कि बोलिए। आपको ही बोलिए शेयर, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो। नहीं भाई, नहीं, उतना भी समझो ना सर, आई एम नॉट अ सोशल वर्कर। सही बात है। और एक बात समझ लो सब लोग, जो चीज मुफ्त में मिलती है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। यूजर who's now वर्दी 1 2 3 4। गुड इवनिंग सर। हेलो या बोलिए सर। सर, ये इकोनॉमिक्स लोग इतने होशियार रहते हैं, फिर भी टॉप 100 इन्वेस्टर में एक भी इकोनॉमिक्स क्यों नहीं? तू करना। क्या बोल रहे हो सर? वर्दी इकोनॉमिक्स लोग इतने होशियार रहते हैं, पर टॉप 100 इन्वेस्टर में एक भी इकोनॉमिक्स क्यों नहीं? सर कभी आपने कोई समोसा वाला होता है या कोई पेंडे बनाने वाला होता है, मिठाई बनाने वाला, वो खुद अपनी मिठाई खाता है क्या कभी? ग्रेट आंसर, थैंक यू। या सर, एनी रिक्वेस्ट? शरद सर, just as a standard disclaimer,
whatever stocks we have discussed as a host co-host. अरे भाई और रुकना आप तो भी मैं बीच में बोल देता हूँ. ये आप अपना दीप दीपेश भाई बोलो. સમજભાઈ કેમ છો? શરદભાઈ કેમ છો? Yeah, tell him. ફોસેકો ઇન્ડિયા કેવું લાગે છે સર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે? कैसा लग रहा है फॉसेको इंडिया? बकवास एकदम बकवास. ओके सर. मुझको सारो नेता में मन पूछो. विशाल बद्रे. ओके सर, अभी आपने आंसर किया था और रात भी हो गई, बट जस्ट मैं एक मेरा पॉइंट करेक्ट करने के लिए बोल रहा था कि जैसे एबीबी सीमेंट्स एंड कमिंस में एलआईसी बेच रहा है, ये ऐसे मैं बोल रहा था, बट स्टॉक नीचे नहीं जा रहे, उसमें बाइंग आ रही है, तो उसमें हम बाय करके ऊपर राइड कर सकते हैं, तो वो मैं बोल रहा छोड़ना था. यार, ये फालतू में काय को बात करता है. नहीं, एक एक साल मिनट के सर, पूरा अरे करने दो. एक मिनट पूरा एक तो दो करने साल दो. के लिए स्टॉक नहीं है यार, छोड़ो ना यार फालतू सर में. भाई, इट इज नॉट ए ट्रेडिंग बेट. यानी आज के दिन में एलआईसी ने अगर 1 लाख शेयर बेचा है या 50,000 शेयर बेचा है, तो अगर किसी ने लिया है तो ठीक है, बट यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंट्राडे ट्रेडिंग की नहीं बात हो रही है, या नहीं एक नहीं महीने नहीं, की बात नहीं हो मतलब रही है. मैं भी इंटरेस्ट नहीं, मतलब 2 3 4 क्वार्टर अगर कंटिन्यूस एलआईसी से बाइंग नहीं नहीं, 3-4 सेलिंग आ रही. क्वार्टर भी नहीं, 3-4 क्वार्टर के लिए भी नहीं बोल रहे हैं हम. ओके ओके ओके, है ना, 3-4 क्वार्टर के भाई लिए नहीं बोल रहे हैं. साहब, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ हाँ अगर एलआईसी नहीं बेचेगा तो देगा कौन? ये शेयर किधर से लाओगे? हाँ, वो भी सही है, अगर किसी को चाहिए तो लेना तो पड़ेगा मार्केट में किसी से. नहीं, कौन देगा? नहीं, अगर स्मार्ट इन्वेस्टर तो नहीं देंगे. सही है. देखिए, कितने साल का है तू? 36. एक बात सुन मेरा. हाँ हाँ तेरे पास जो भी स्टॉक है ना, बेच देख सोमवार को, और ये सब ले ले. हाँ तू 60 साल का होगा ना, हाँ हाँ, तो 10 20 30 टाइम होगा तेरा पैसा. समझा? ओके ओके. और सही है. ये चिंदी चोरी मत कर कि वो बेचता है ना, ये लेता है ना. अरे तेल लगाने गया एलआईसी है. नहीं, हाँ, कंपनी तो ब्रांडेड है एंड इंटरनेशनल है, अच्छी है. ओके, गॉट इट. आपका सवाल का आपके पास ही जवाब है विशाल भाई. नहीं गॉट इट, विशाल, थैंक यू. हाँ हाँ ये कौन लेता है बेचता है वो अपने बाजार वाले देखते हैं. ओके. हाँ हाँ, सही इन्वेस्टर है. देखता है कंपनी कैसा है. हाँ और तुम बड़ा आदमी बनेगा जब समझेगा कि कंपनी अच्छा है या बुरा है. तो हाँ हाँ, ये फालतू में ये बेचता है, ये लेता है, तेल लगाने जाते हैं. ओके, और गॉट इट. दीपेश भाई, फोसेको बहुत अच्छा कंपनी है. 10 20 हजार रुपये हो जाएगा आराम. थैंक यू सर. चलो डॉक्टर भाई. हाँ जी, नमस्कार जी शरद जी. सर इसी जो बात कर रहे हैं यहीं से बस 8-10 शेयर बताइए कोई 10 साल के लिए जहाँ इन्वेस्ट करते रहेंगे लॉन्ग अब टर्म. पैसा दो, और पैसा दो. अच्छा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. जी. फिर वो ये बात फुकट में सब कुछ चाहिए. अच्छा अच्छा. आपको बीमारी होती है कोई? नहीं, तो बात समझ गया मैं नहीं आपकी. नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना. हाँ. नहीं, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो स्पेस में जाके डॉक्टर से पूछते हो क्या? हाँ, समझ गया आपकी बात. गुड. चलिए. और डॉक्टर साहब, स्पेस का रिकॉर्डिंग सुन लेना 1-2 बार, आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे उसमें से. अच्छा सर, ये टाइमलाइन पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है. ठीक है, मैं हाँ ढूंढता हूँ. ठीक है जी. अब फर्क हाँ प्रसाद जी नमस्ते. बोलिए.
नमस्ते सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही जनरलाइज्ड है। मतलब अभी जो चैट जीपीटी का 4th वर्जन आया, फिर अभी नहीं मालूम, एआई के नहीं जो मालूम, नहीं। वो छोड़ दो, हम लोग केपेबल नहीं। नहीं, मेरे मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन था सर मेरा कि मतलब ओवरऑल आईटी सेक्टर पे और प्लस जो बाकी भी सेक्टर्स है, जैसे मेडिसिन हुआ, लॉ सेक्टर हुआ, या फिर जनरल, मतलब जनरल वो सभी सेक्टर पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसको आप कैसे देखते हो? मतलब एक बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे भाई साहब, जनरलाइज्ड। भाई साहब हमको कुछ नहीं मालूम। ये हमारा फैक्ट फाइंडर है, वो जवाब दे देगा। फैक्ट फाइंडर दे जवाब दे। नहीं, वो लिसनर मोड पे है, ही इज कंप्लीटिंग सम ईयर एंड वर्क सर। उनका मैसेज आया। आप प्रसाद जी इनको डीएम कर देना। ओके Fact सर। finder। हाँ, चल दे भाई। अभी कोई नहीं है रिक्वेस्ट। डिस्क्लेमर दे दूं? दे दो। Yeah, whatever stocks has been discussed during this space by the host, co-host, and the speakers, we don't recommend anything. यहाँ पर जो भी है वो अपने व्यू रखे हैं। कोई भी स्टॉक्स आप लेते हो या सेल करते हो, that is on the individual's prerogative. We are not forcing anyone to sell or buy. So please do your due diligence and contact your financial advisor for any further guidance. नहीं, बट मैं बोलता हूँ, हाँ सर। अच्छे शेयर लो, अच्छा एमएनसी सब पकड़ो, इंडस्ट्रियल, जिंदगी सुधर जाएगी। लेबेज में कुछ नहीं रखा है। लेबेज में क्या होता है, तुम पूरा 6 महीना पैसा इकट्ठा करता है, फिर हमारा जैसा भेड़िया लोग आता है, पूरा लूट के चले जाता है, तो तुम्हारे हाथ में क्या बचा? डेबिट। अच्छा शेयर लो, न्याल हो जाओगे। टेक माई एडवाइस, प्लीज इन्वेस्ट वाइजली, एंड it is a general narration. MNC in industrials, you will never ever go wrong. You will always make money. Lever also, and so many others. So make it a very easy thing for you. Don't complicate things. Don't invest in things what you see on TV, what you think ये जोडियक अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा मत लो। शेयर में कंट्रोल। That's it. Yeah, tell me, sir. Yeah, so Yeah, Sombir. are you speaking? सोमवीर जी बोलिए। हाँ, शरद सर नमस्कार, समर सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरी एज 27 ईयर्स है एट प्रेजेंट, और सर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी 6-7 साल और है, 2-3 साल हुए मेरे को सीखते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो टेक्निकल्स के बारे में सर थोड़ा बहुत सीखा है। मैं फंडामेंटल्स सीखना चाहता हूँ। तो कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सर, अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो? कितना फीस देने को तैयार है? सर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ सर, कितना रहेगा? नहीं, गवर्नमेंट में किधर भी है, फीस कितना दे सकते? सर आपका फीस तो नहीं हो पाएगा सर पूरा मेरे से, डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ। जस्ट गाइडेंस अगर थोड़ा सा मिल जाए तो। अब 50 लाख लेता हूँ सिखाने का। 50 लाख सर, वो लगेंगे सर 10 साल तो मेरे को लग ही जाएंगे कमाने में। तो देखिए, आप है ना म्यूचुअल फंडों में डालिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ ज्यादा ट्रेडिंग वेडिंग मत करो। अब पैसा आएगा नहीं आपको, मैं लिख के देता हूँ, आपको ट्रेडिंग में लॉस ही होगा। आप कितने भी होशियार है, आपको लॉस ही होएगा। ये हमारे ये
अमित भाई आए हैं गुलेचा, तो हमने रिक्वेस्ट भेजा है, तो आओ अमित भाई आओ, बहुत दिन हो गए आपको मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ बोलो मोहित भाई। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल हाँ सर? बोलिए बोलिए। एम आई ऑडिबल? यस यस। यस सर, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर हो गया। मैं ऑप्शन बाइंग करता था, तो एक्चुअली मैं ऑप्शन बाइंग जब तक करता करता था तो मैं ऑप्शन लॉस करता था। तो जब से मैंने ऑप्शन सेलिंग में स्विच किया है ना, तो मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ और मैं कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। तो माय क्वेश्चन इज कि सर इसको स्केल अप कैसे करें? अब मेरी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है और एक्यूरेसी भी बढ़ गई है, और टाइम डिके की वजह से जो मेरे को प्रॉफिट होते हैं वो भी होते हैं। तो मैं इसको स्केल। मोहित हाँ भाई जी। आप नहीं एक स्केल मिनट कर सकते हो। एक मिनट मैं और कितने लॉट से खेलते हो? बेसिकली मैं अब मतलब अगर मैं उसमें कर रहा हूँ तो फिर निफ्टी में कर रहा हूँ तो मैं 7-8 लॉट ले लेता हूँ, मिनिमम 10 लॉट्स भी ले लेता हूँ। अभी मतलब छोटा रिटेल ट्रेडर हूँ मैं भी, और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेड लॉट ले लेता हूँ। मतलब मैं स्केल अप करना चाहता हूँ उसको, और ऑप्शन बाइंग में जैसे हाथ डालता हूँ तो मेरे को ऑप्शन बाइंग में लॉस हो जाता है। तो मेरा माइंडसेट वो ऑप्शन ऑप्शन बाइंग वाला। बाइंग में नहीं, अभी आप ऑप्शन बेचो, बहुत प्रॉफिट होगा। और हाँ जी मिनिमम 100 लॉट आप खेलो, 100 लॉट खेलो। सर, उतना कैपिटल भी तो नहीं है ना 100 लॉट खेलने के लिए। घर की वैल्यू क्या है मोहित भाई? घर की वैल्यू क्या है आपके? घर की वैल्यू सर होगी 20-25 लाख। तो वो बेच के कर लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग सेलिंग। सर आई एम सीरियस। नहीं मैं ही सीरियस बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। ये आप अभी छोटे हो, आपको पता नहीं चलेगा। यू आर प्लेइंग विद द रिस्क, बराबर है? हाँ जी। आप जो कर रहे हो ना, यू आर प्लेइंग विद फायर। तो अरे जब मैं बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग इज लाइक ईटिंग साइनाइड, तो भी तू एक्चुअली समझता नहीं है। सर ऑप्शन सेलिंग में सर क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं हम। ऑप्शंस वो बाइंग में मेरे हिसाब से वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है मोहित भाई, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, बराबर है? आप नहीं समझोगे। आपको जब पता चलेगा ना, रियल में पिक्चर में आपके सामने पैसा जाता होगा ना, तब वो पता चलेगा। जब सीतारामन कैंडल बनेगी ना, तब पता चलेगा क्या होता है। सर इवेंट डे पे मैं अवॉइड करता हूँ। नहीं अरे आपको नहीं बोल पता के चलेगा आता है ये क्या? इवेंट है कि नहीं है। आप बोल के आता है क्या इवेंट? नो सर। तो सर वो फिर स्टॉप लॉस भी तो होता है सिस्टम में। अरे भाई चल, तू माफ कर, चल तू बेच। ठीक है सर, एक्सट्रीमली सॉरी मोहित भाई, गलती होगी हमारी। आप सही हो सर सर। समझाओ ना, फिर आप यहाँ पे सिखाने के लिए हो तो फिर। सर आप सर ओवरऑल हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग मत करो, बस और कुछ नहीं समझाना है हमको। सर कोई एक वैलिड रीजन। आप कोई भी एडजस्टमेंट करोगे ना, आप कोई भी एडजस्टमेंट करोगे, लॉस तो होगा। 50% होगा, 25% होगा, 30% होगा, कोई तो लॉस होगा। देयर इज नो होली ग्रेल कि वहां पर लॉस नहीं होगा आपका, ओके। बराबर है? आज नहीं, और अभी एडजस्ट ये આપણે અમિતભાઈ आएगा, वो समझाएगा तेरे को। और एडजस्टमेंट में है ना, पैरासीटामोल लेनी पड़ती है 3:30 बजे। ओके। अरे भाई मेरे पास में इतना पैसा है, सब कुछ है, तो मैं नहीं खेलता और तेरे को खेलने का है क्या? मालूम। तो बेसिकली हमें फिर क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए? नहीं, आप क्या करते हो मैं एज ए लिविंग? क्या करते हो मोहित मैं जी? टीचर हूँ। यार कॉन्सेंट्रेट करो ना उसके ऊपर, आप वैल्यू एनहांसमेंट करो ना टीचर का। ओके आप आगे कुछ 2-3 चीजें सीख लो, चैट जीपीटी है वो सीखो, ओके ओके और इन्वेस्टमेंट करो आराम से। ओके सर।
अपने टीचर का कोर्स जब टीचर बने उसके लिए भी आपने 3-4 साल तो निकाले होंगे ना बनने के लिए भी। मैंने सुना है कि जो कहते हैं जो वॉरेन बफेट है वो भी कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो लीप ट्रेडिंग करते हैं, उनका व्यू लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे वो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जैसे अभी मोहित भाई आपको आपके अकाउंट में कुछ लॉस होगा ना तो वॉरेन बफेट नहीं आएगा, बराबर है, यहाँ पर आपका वो लॉस भरने के लिए। आप पहले वो समझो। जैसे निफ्टी भी किसी का पिछवाड़ा दिख के हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, सिंपल वे। ओके किसी का पिछवाड़ा देख के हम ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप समझे? बैड लैंग्वेज समझ, बैड लैंग्वेज। नहीं सर, नहीं समझ रहे तो क्या करूं मैं? सॉरी मोहित भाई, आप समझो, आपको ये यू आर प्लेइंग विद रिस्क, और इस माहौल में अगर आप पुट बेच के जाते हो ना, यू आर डूइंग द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ। अगर ओवरनाइट पुट बेच के गए ना तो यू आर डूइंग द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ, याद रखना। यस सर। और टीचर हो आप, टीचर के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, वो टीचिंग लाइन अच्छी है, एकेडमिक लाइन अच्छी है। अरे 10 ट्यूशन मारो ना यार, पैसा ही पैसा होगा। जी सर। ठीक है, और मोहित भाई कुछ है? नो सर, थैंक यू। थैंक यू एंड सॉरी इफ यू फेल्ट बैड। नो सॉरी भाई। इट्स ओके सर। हेमेन भाई शाह। हाँ नमस्कार शरद भाई, समर्थ भाई, बहुत टाइम से आप लोगों को सुन रहा हूँ, काफी टाइम से। मैं प्योर इन्वेस्टर हूँ, और जो शरद भाई बोलते हैं हमेशा कि अच्छा शेयर लो, उसके साथ एक और गोल्डन लाइन ऐड कर दी है मैंने लाइफ में, खराब से खराब टाइम में अच्छा शेयर लो। तो जैसे ये 2-3 साल में कोरोना, जब भी मैं तो मार्केट में तभी आता हूँ जब मार्केट क्रैश होता है, क्योंकि जब 70% सेल का डिप मुझे कुछ दिखता है तभी मैं मार्केट में आता हूँ अच्छे शेयर लेने के लिए। फिर सो जाता हूँ 2 साल, फिर जागता हूँ। जैसे बीओबी मैंने 44 में 10,000 लिए थे, 103 में निकाले, 55 रुपीज में बीओआई मेरे पास पड़े है। तो सर जी सर, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, बिकॉज 12:30 हो गए and now 3.5 hours the space has continued. अगर शरद सर ओके है तो मैं सोने को जा रहा हूँ, अभी मेरे को नींद आ रही है। ठीक है, नहीं बस जस्ट कुछ पूछना है, यू कैन आस्क एनीथिंग यू विश टू आस्क शरद सर और एनी इट इज जस्ट पूछने की बात नहीं, जस्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट कि जो शरद भाई ने एक बात बोली कि अच्छे से शेयर लो खाली, उस वही दैट इज व्हाट मुझे वो उसके लिए थैंक्स बोलना ना, दैट इज व्हाट इट इज नॉट वेरी सीरियस क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या परेश भाई। समर्थ भाई, शरद भाई, मैंने तो I just wanted to add कि how come people, what is wrong with buying one share a month or one share a week or 2 shares a month or 2 shares a week? Why is everybody aiming beyond their capacity? नहीं, मैं जवाब दूं उसका परेश भाई? हाँ बोलो ना। Because the value of rupee has depreciated. नहीं sir, what I'm saying is, let us say 15-20 years ago, Paresh bhai, you are 62, right? Right. 15-20 years ago, we used to invest in post office. My father used to invest in post office, where the rate of interest was 12, 13, 14%. Okay, we used to do an MIS. Okay, right. So we used to do a recurring deposit. We used to have patience कि भाई वहां पर पैसा बनेगा 5 साल में, 7 साल में किसान विकास पत्र में डबल होगा। That patience was there. अभी किसी के पास patience नहीं है। But then if you don't have the patience, you're going to pay the price, right? Yeah, and people अभी सबका P&L सब दिखा रहे हैं वहां पर स्क्रीनशॉट, उसको देख देख के सब उस कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करके 2 लाख 3 लाख जो भी है उड़ा रहे हैं पैसा। अच्छा शरद भाई, समर्थ भाई, any of you, I have a question. I'm not too much meaning. So okay, so somebody had told me, यानी long back समझाया था कि a person should aim at you should from your investments you should try to beat
the rate of interest plus the real inflation rate. Add the two together, and if you can beat that consistently and conservatively, you are more or less ahead of the game. Does that make sense? Yeah, it's right. Yes. Right, sir? Yes, 12-13% आज के दिन में it is good. Okay. So what happens is, like I said, I'm 62 years old. I meet a lot of young people and trying to explain to them. And Sharad bhai, I understand how you get, agitated and sometimes become sarcastic. But I think please continue and please try to pull in a larger audience of more younger people who are more uh, amenable to your kind of thinking and learning from you, I and don't especially invite from your anybody. experience. I Huh? don't invite anybody. जिसको आने का No, आता no, है. but sir, I see. मुंह तमने मस्का नहीं मारतो. What I'm trying to say, at 62, I'm also trying to learn from you, because you've probably spent, God knows, 30, 40, 50 years in this, right? Yeah. You've seen the good, the bad, the ugly, whatever. So I'm just trying to try to pull in more people instead of all this call, put, and future, and God knows what is happening now. People, in fact, I consider my wife my best planner, very honestly. Anyway, good night, sir. It's been long. I need to go for a cigarette also now. Chalo, sir. Look forward to talking to you soon. Thank you, Paresh. Yeah. Yeah, Mahesh K. Yeah, Fact Finder. No, the interesting thing I've been noticing all the spaces of all the people over the last, I think, 3-4 weeks, and the numbers are dwindling. There used to be a point of time when, spaces, I would see 1,000, 1,200, 1,300 people. There were a couple of guys who would get some speakers. I'm talking not about your spaces, but about a couple of guys. They used to get 300, 400 easily. Today, the same guys are not able to get more than 80, 70, 60 people. Clearly, and this is consistently across. I've seen several, hosts and several speakers. I think there's definitely a lot of delusion that is now finally entering I think people are really exhausted and bored in the stock market now. And I think they're realizing they're losing money. I don't know whether that's the sense you get, but just simply looking at the number of people attending spaces. I mean, I remember even this spaces Friday night, at times you would actually have, at this time, 12 o'clock, 12:15, you'd still have 1,000 people, 1,500, 300 people listening. Correct. It's come down massively. No, Fact Finder, I know 2 to 3 people on Twitter. They've left Twitter just because they've made losses and now there is no money to invest or trade. So that is a and just people like Kedia are selling courses for $6.99. You can imagine how low they can stoop here, and how badly he must be doing in trading. And also another thing, same thing, call, put, AO, nonsense. See, ultimately, it's not a zero-sum game, it is a loss game, an insolvency game. People don't understand that. And fact finder, believe me or not, in my account or in anybody's account, I don't allow them to trade Nifty, Bank Nifty options. No, you cannot.
but they sell all dangerous products to the public. True, very true. I agree with you. I think people are getting exhausted. I'll tell you a very interesting data point. So the total, so RBI comes out with this data showing how much have households put into various asset classes. So they show how much households have put into fixed deposits, mutual funds, insurance, PPF, direct stock, all of that. So in FY22, which is a better year than FY23, I think FY23 will be a very bad year. But FY22, interestingly, the retail investors put in only 45,000 crores into the stock market. It was almost half of what was put in the previous year. I'm sure in FY23 it'll be even lower. But if they have put only 45,000 crores into the market directly, I was also looking at how much, uh, you know, what is that? The tax that you pay on trading and the brokerage, how much brokerage the industry has earned. So the tax that you give to the government plus the brokerage that you have earned, that brokers have earned, is almost 40,000 crores. So, I mean, I'm just saying that effectively people have spent 85 to 90,000 crores, of which almost 40,000 crores has gone towards the government or gone towards brokers. Half of it. या महेश के कुछ बोलना है क्या सर आपको? महेश के शरद सर हेलो शरद सर शरद सर और सम्राट जी को नमस्ते। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे 50 क्विंटल 100 बोरी समथिंग मेरे खुद के फार्म पे जीरा पड़ा हुआ है, तो अभी आप फ्यूचर में जो इंटरनेशनल मार्केट है तो इसमें मैं रखूं या निकाल दूं? एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने ये यूट्यूब वगैरह काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। ये जो ट्रेडिंग में मैं भी थोड़ा मतलब फंसने वाला था, लेकिन शरद शाह और सम्राट भाई के सर के मतलब ये स्पेसेस वगैरह सुनने के बाद मैंने अभी पोस्टपोन किया है प्लान है। उसमें क्या करते हैं सारे लोग कोर्स बेचते हैं, यूट्यूब पे देखो वो खुद इंट्राडे वो फला फला, लेकिन मैंने देखा है कि वो खुद उनका जो मेन जो आय इनकम का जरिया है वो यूट्यूब से जो उनको मंथली इनकम है वही होती है। मेरे हिसाब से वो शायद ही उनकी कोई टिप्स वगैरह वो काम आए। तो मैं मेरे सवाल का जवाब चाहता हूँ सम्राट सर और सॉरी शरद सर, ये जीरा अभी खींचेगा या क्या होगा? मैं को ट्रेडिंग वगैरह 6,500 रुपये है ना, 6,500 रुपये है ना क्विंटल का। क्विंटल का 20 किलो का कितना हाँ हुआ? 20 किलो का हाँ अभी मतलब 350 रुपये समथिंग मिलता है यहाँ पे भाव है। अभी और बढ़ेगा या क्या होगा इंटरनेशनल मार्केट में? कुछ पता है? आप कमोडिटी वगैरह करते हैं ना? नहीं कमोडिटी नहीं करते। हाँ बट कई जगह पर बारिश बहुत हुई है इसलिए इसका शॉर्टेज होगा तो भाव ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा हाँ मानना है। क्योंकि ये जो इसका उत्पादन खाली ये राजकोट और राजस्थान ये यहीं पे होता है, बाकी जगह ये पंजाब हरियाणा। हाँ मेरे सिटी में ही होता है, हाँ मेरे सिटी में होता है जी बट बारिश बहुत हुई है इस साइड इसलिए शॉर्टेज है। ठीक है थैंक यू। बट भाव मिलता है तो एक बार निकाल देना। ठीक है थैंक यू सर थैंक यू। अरे निकल जाओ ना यार, ठीक है सर मजे की नींद लो ना यार। थैंक यू सर थैंक यू। वैसे भी हिस्टोरिक हाई है ये भाव, कभी देखा नहीं है भाव। ठीक है या ऋषभ या सर हेलो सर। सर मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि जैसे कि हमने देखा ही है कि सनसेक्स वगैरह की रिटर्न्स एनुअली अगर हम SIPs वगैरह भी करते हैं तो इट कैन बी 15% और 14%,
जो भी है हम डायरेक्ट करते हैं या निफ्टी 20 में करते हैं, बट द थिंग इज अगर हम डिप्स बाय करते हैं या XYZ कुछ भी करते हैं तो इन फ्यूचर ऑल्सो लाइक मैं 5-6 ईयर्स से अभी भी कर रहा हूँ सिप्स एंड ऑल, तो द एक्यूमुलेशन अभी भी मेरा है रिटर्न तो वो 15% ही है अराउंड। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोस पकड़ पाते हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग हम करना ही नहीं चाहते और करना ही नहीं है, तो सिर्फ मतलब मार्केट क्रैश होता है और समथिंग लाइक दैट, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, यू हैव बिन इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो आप बता सकते हैं कि वो चीज़ ही बेटर है एट द एंड। मैं सोचता हूँ कि अल्टीमेट तो निफ्टी बड़ी है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं चाहिए कि हम स्टॉक्स भी ढूंढे इधर उधर भी ढूंढते रहे कुछ भी करें से इट्स बेटर टू बी इन इंडियन इकोनॉमी कि आप इन्वेस्ट ही निफ्टी में कर दो, दैट एक्यूमुलेट्स एवरीथिंग। नहीं, आपका ये बात है ना वो गलत है कि 15% रिटर्न, ये वो काय का 15% रिटर्न, ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप गिनोगे तो इतना रिटर्न नहीं है, उल्टा लॉस है। पर आप नीचे में नीचे भाव से पकड़ के गिनते हो, इसके लिए बोलते हो 15%। कहा 15%? तुम कौन सा दुनिया में जीता यार? 6% ब्याज में क्या 15% ब्याज मिलेगा आपको? आप XIRR बोल रहे हो ऋषभ भाई? सर CAGR टर्म्स में मतलब जैसे 15% अगर होता है या मैं मेरे को 12 भी होता है, मैं तो 12 मान के भी चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ आई बीट ओनली FD रेट्स। सुन, 2008 का टॉप था 6300, 2016 का बॉटम था 6800। वेर इज योर CAGR? टेल मी। यस सर, लेकिन सर इफ वी टेक अ पीरियड ऑफ 20-30 इयर्स एंड वी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग सिर्फ एक ही जगह, मतलब आई एम सेइंग जस्ट निफ्टी और सेंसेक्स, नथिंग मोर देन दैट। अरे जब फॉर्म हुआ ना निफ्टी और सेंसेक्स, नेक्स्ट सेंसेक्स, इट वाज इन 1985 और 84। उधर का तुम अभी पकड़ता है, तुम पकड़ो ना 2018 से अभी तक क्या मिला तेरे को? So this is a statistical tool which people use to prove their own point, which is wrong. And henceforth, you now last March Nifty was 17,450, and this March 17,356. So what is the return? नथिंग, मैं बिल्कुल Then माइनस में होगा। फिर दैट इज सो आल्सो ट्रू। राजा स्टेटिस्टिक को यूज मत करो ज्यादा, अब पछताओगे। ऋषभ भाई आपके अकाउंट में मिलता होगा बिकॉज यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन मिडवेज ऑल्सो। आप बीच में कभी भी करेक्शन आता है तो आप डाल देते हो पैसे, बट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट गिनोगे ना तो देयर इज नो रिटर्न। यस सर, बिल्कुल, बट मेरा तो यही कोशिश है कि जब भी कोई डिप आए बट मेजर। एवरीबॉडी विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट यू आर डूइंग ना यार, एनीवन कैन नॉट कॉपी यू ना। ओके, नो आई एम जस्ट सेइंग कि ये चॉइस हो सकती है कि इन्वेस्टिंग की हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। एवरीबॉडी हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। श्योर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हिमांशु जी बोलिए, हिमांशु गुप्ता जी। समर जी नमस्ते, शरद जी नमस्ते। सर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से। हाँ, लिक्विडिटी मार्केट में धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसे अभी शायद किसी ने भी बोला, शायद फैक्ट फाइंडर ने या किसी ने। एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, हमारे पास डेटा आता है ज़रोदा का या ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स को अब जैसे आया कि NSE ने बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम कर दिया, 15 कर दिया, उसका जो मार्जिन है उसको भी वो कम करेंगे। तो हमें एक
काइंड ऑफ आइडिया लग रहा है कि मार्केट्स में जो लिक्विडिटी है, जो रिटेल था, वो धीरे धीरे बैकआउट कर रहा है और लिक्विडिटी मिल नहीं रही है मार्केट में किसी को, और ये काइंड ऑफ अट्रैक्ट करने के लिए वापस, और हम देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते में 3 दिन एक्सपायरी उन्होंने बढ़ा दी। पहले थर्सडे होती थी, इन्होंने वेंसडे कर दी, ट्यूसडे कर दी, और मेरे ख्याल से ये शायद सारे हफ्ते में एक्सपायरी कर देंगे, और धीरे धीरे ये लिक्विडिटी वापस लाने की कोशिश हो रही है कि अट्रैक्ट करें वापस जो रिटेल है उन सबको। तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया शायद ये लग रहा है कि जो लिक्विडिटी क्रंच है उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है ऊपर लेवल पे कि वापस रिटेल को खींचा जाए, क्योंकि जो 2020 के बाद यूफोरिया बना था मार्केट में, हर दूसरा बंदा जो ट्रेड कर रहा था या इन्वेस्ट कर रहा था, अभी वो खत्म हो गया। अभी वो यूफोरिया नहीं है मार्केट्स में, जिस वजह से भी हम देखें कि इंडेक्स भी क्या, स्टॉक्स भी उतना नहीं चल रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, ना के बराबर चल रहा है। तो आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? Yes, take kind. No, if Sharad ji or you want to make comments, go ahead. I'll also add something later. No, you speak. I don't have No, I anything completely except agree with. yeah, I also agree with. I completely agree with what he's saying. Obviously, they have reduced the size of the. I was quite surprised about it because if you think about it, the bank nifty has not gone anywhere. Why would you reduce the size of the contract now? It's obviously to get liquidity. But here is the interesting thing. I don't know how many of you read my long thread on the finance bill about how brilliant it was. But here is the interesting thing. Effectively, what the government is trying to do is to push HNIs who are investing into debt funds and forcing them to, because of the tax saving, to move into arbitrage equity funds. Arbitrage equity funds people buy only for the debt kind of return, right? Short term debt return. And with no taxation or very low taxation, people will try and shift over there. Now, arbitrage funds for the last 1 year have actually been seeing outflows. Now, this is very important because if you look at the biggest arbitrage stocks in the country, and I'm sure a lot of people are aware which are the stocks with the highest arbitrage, it is essentially Adani Group stocks, maybe JSW, and a few other stocks where the arbitrage opportunity is very, very high. So, if you force those debt investors to take money away from debt mutual funds and put it into arbitrage equity funds, then automatically you are effectively putting cash into the equity market. You're obviously selling futures against it, but then those the arbitrage funds will now go to buy stocks like Adani or those stocks which are being managed in the market. It is, I mean, everything has been done so smartly by this government at the cost of investors, at the cost of, you know, everybody. And the other thing is, they are forcing people to not buy gold ETFs and forcing them today to buy hard gold. Now, for every rupee of gold you buy, you are paying 10% import duty. Most people will say, listen, yeah, No, I don't want to pay. 15%. 15%. It's 10%, no? No, it's 15%. okay, fine. Let's say 15%. If you're paying 15% import duty, boss, let's face it. No Indian wants to pay so much of import duty. They will go and smuggle it. Who's the first? How do you smuggle gold? From airports and ports. Who owns the ports and airports? Seriously, if you think about what this government is doing in terms of policy, it is only helping somebody specific at every level. Why would you discourage people buying ETFs? Doesn't make sense. And 3% GST on gold.
18%. 18% GST on the gold, digital gold. You know what? See, I thought import duty was 10% plus 3%, but anyway, maybe I'm wrong. But if you think about it, if a person buys the gold bonds, okay, because that is the second most efficient. So now the most efficient buying way of buying gold is either go buy gold in the black market. Absolutely the most efficient way of buying gold. The second most efficient way of buying gold is to buy it in the market. If you want, immediate liquidity. The third most efficient way is sovereign gold bonds, and finally, the last inefficient way is ETFs. Now, if you go by sovereign gold bonds, you are effectively lending money to the government of India at only 2.5% rate of interest. The government has to eventually, after 5 years, give you the price of gold. But in their balance sheet, when they do the budget, they don't account for the price of gold. They only account for 2.5% rate of interest. That's how they're trying to reduce their cost of borrowing. And say 3 years or 4 years down the line, when some of those bonds come for for redemption, no, they can simply cut import duty 1 month or 2 months before that. If they cut import duty and say we are deciding to cut import duty from 15% to 5%, straight away people will lose 10% value in those bonds. It is actually very possible that the government can do this when those bonds come up for redemption. I have a fairly good experience about this. It is most dangerous to buy gold or sovereign bonds in India because this 15% can change overnight and you will be left holding the baby. It's very dangerous investment. Yeah, who's next? Yeah, Himanshu, anything to add? हाँ जी सर, एक ये चीज ये ऐड करना था कि आपको क्या लगता है कि आने मतलब जो लिक्विडिटी क्रंच अभी है, आपको आपके हिसाब से क्या व्यू बन सकता है? बिकॉज एज वी आर सीइंग देयर इज नथिंग लाइक कि बहुत ज्यादा कुछ रिटेल पार्टिसिपेशन है, और मतलब मैं थोड़ा सा शायद कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा शरद जी, ऑब्वियसली ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस इन इट। Himanshu, just to interrupt you, there is only 6% free float available right now in the mid cap, small cap हाँ जी, space. Okay, 6% free float है वहां पर। 6% आई डिडंट गेट यू। नहीं हिमांशु भाई, आपको क्या बोलने का है बोलो ना यार। हाँ, मैं वही मैं ये पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ शरद जी आपके व्यू पॉइंट से। हमने ये देखा है कि जैसे एक यूफोरिया जब मार्केट में बनता है, तभी कुछ एक मेजर हम जैसे बात करते हैं, ऑब्वियसली आई एग्री विद यू कि जो 12,000 है मेरे हिसाब से वो 12,500 है, वो मुझे भी दिखता है। पर आपको नहीं लगता कि अभी मार्केट किसके लिए गिराएंगे? यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे रिटेल घुसा नहीं हुआ है, यूफोरिया बना नहीं हुआ है, तो मार्केट किसके लिए गिराएंगे? गिरना भी तो उनको बराबर है, चाहिए ना। नहीं गिरेगा। यू आर राइट। नहीं, यहाँ से मतलब थोड़ा ऊपर जाके क्या होता है ना, जब रिटेल होता है वो कहता है कि भाई तेजी में मैं पैसा डालूंगा, मंदी में अपने बस की नहीं है। तो जब तेजी बनती है उसको एक लगता है कि चलो अब तेजी हो गई है, अब यहाँ डालते हैं। तो तेरे को फंसाने क्या बोलने का, बोलना यार, रात को इतना टाइम पे क्या तेजी मंदी क्या होने का है? मेरा बस इतना 10,000 हो जाएगा, चलना। लिक्विडिटी आप समझता नहीं है, जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है ना, वो मार्केट का वैल्यू नहीं है, समझा तुम? ओके, हाँ, नो लिक्विडिटी नो मार्केट, नो मार्केट नो निफ्टी। इतना सिंपल सा कि तुमको वो तेजी सोचने का है कि लिक्विडिटी नहीं है तो ऐसा रिटेल कोई सस्पेंस। देखो रिटेल आएगा नहीं, रिटेल का पैसा खत्म। या फैक्ट फाइंडर। No, I just wanted to add something to what Himanshu is saying. Himanshu, please understand, look at RBI data.
RBI data is saying that household savings in India has fallen, from about 8-9% to 7%. Sorry, 8-9%, about 10-12% to 7% in FY22. In FY23 first half of this year, it has fallen from 7.2% previous year to 4%. This is the lowest net financial savings at the household level in the last 30 years. Now remember, the first half of FY23, you did not see the impact of the EMI increase, because if the RBI hikes up rate, usually the impact on EMI comes with a 3-month lag or a 6-month lag. Depends. Say 3-month lag. So second half of this year, which is second half FY23, which we are nearly finished now, the impact on savings is even worse. And this impact will continue even in FY24 first half. So people have no money, boss, to invest. Very limited money because your EMIs are going up by 20%. चलिए अर्पित अर्पण सील बोलो। ठीक है, अर्नब जी बोलिए। शरद सर नमस्ते, समर जी नमस्ते। नमस्ते सर। एक्चुअली कुछ दिन पहले शरद सर बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल्स के बारे में, तो हमें ऐसा लगा उनकी बात सुन के कि सीमेंस और एबीबी ये 2 कंपनियां मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकती है। तो मुझे बस इतना पूछना था सर कि क्या हमें मतलब मैं कोई सजेशन नहीं मांग रहा हूँ आपसे सर, बस खाली इतना मांग रहा हूँ कि मुझे एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि नहीं 3 स्टॉक्स, एक हनीवेल ऑटोमेशन, दूसरा बॉश लिमिटेड और तीसरा टाटा एल्क्सी। बस यही पूछना था सर। अच्छा है, तीनों अच्छा है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ट्रेंडिंग शरद भाई और फैक्ट फाइंडर से सवाल है मेरा, प्लीज आईडीबीआई बैंक के लिए। आज ही मेरे को एक न्यूज मिली कि एनसीएलटी ने इक्विटी शेयर्स का कैपिटल को रिड्यूस किया है, साथ ही उसने 50,000 करोड़ के आसपास का जो सेट ऑफ किया है लोन्स को उन्होंने। तो इसका जो इम्पैक्ट है, बिकॉज आई एम होल्डिंग क्वाइट हैवी क्वांटिटी इन आईडीबीआई बैंक, तो मैं जानना चाह रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा आफ्टर ऑल। विल दिस शेयर है? मेरे पास है करीब 80,000 क्वांटिटी है शरद भाई। तो मैं चाह रहा हूँ कि 40 इसमें लाख का माल हुआ ना ऑलमोस्ट। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका जो है, क्योंकि जो एनसीएलटी ने इक्विटी शेयर का रिडक्शन किया है कैपिटल में, दूसरा इसका जो सेट ऑफ किया है उन्होंने 50,000 करोड़ का अपनी बैलेंस शीट से, तो क्या रहेगा, क्योंकि डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है इनके टारगेट पर है ये, तो अल्टीमेटली कुछ कर पाएंगे इसमें ये लोग? नहीं, अच्छा ही रहेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ठीक है शरद भाई? अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है तो बैंकिंग सेक्टर सबसे पिटेगा, सबसे ज्यादा पिटेगा, लेकिन अगर, क्योंकि ये शेयर ऐसा है कि मार्केट बढ़ता है तो बढ़ता नहीं। जी, ये बिकने वाला है ना जी, इसके लिए इसका दाम ऊपर जाएगा। ओके, ठीक है सर भाई, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। सर क्लोज डाउन रहे सर। ओके, ठीक है सर, गुड नाइट सर फाइंडर, ऑल द स्पीकर्स, थैंक यू वेरी मच। Good night, everybody.